guest speaker for today, Professor Dr. Nasir Saeed Khan, and all the members who have joined us this evening. Assalamu alaikum. I am Shizat Asham, final year MBBS student from King Edward Medical University, and on behalf of Camp Psych, I welcome you all to this talk on the series Choose Psychiatry. It is with immense pleasure that I introduce our speaker for today, Professor Dr. Nasir Saeed Khan. Dr. Khan is the former professor and head of Psychiatry Department, Services Institute of Medical Sciences, Lahore, where he has trained countless young psychiatrists. He has been the president of Pakistan Psychiatry Association for the year 2017-2018. With more than 30 years of experience to his credit, he is currently working as associate professor and director of faculty development at Queen's University, Canada. Throughout his remarkable career, he has taught countless undergraduate students of MBBS, BDS, allied health sciences, as well as postgraduate trainees, masters, and MPhil students. His research interests include developing guidelines for physicians, psychosis, and childhood and developmental disorders. Sir, it is our immense pleasure and honor to have you with us today. Thank you for taking out time and joining us today. Thank Sir, you very it will be much, our Shiza. pleasure to be hearing you today. So without wasting any time, start with the interview. Before we go into the future and present of psychiatry, would you like to take us back to your journey through medical student you were, and how was your relationship with psychiatry as an undergraduate student at that time? When Mohammed Yushe sent me the format, I was surprised, honestly speaking. Very, again, goal-directed questions, which were excellent. I'm not saying that they were not good, but honestly speaking, I feel that I will deviate a little bit. So start एक फैज की नज़म है जो अक्सर मैं अपनी प्रेजेंटेशंस में एंड पे पढ़ता हूँ, लेकिन आज मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। इस नज़म में कुछ मेरी कहानी है, कुछ मेरी हिजरत की कहानी है, और कुछ मेरे मरीजों की दास्तान है। सो आप इसको रिलेट करें अगर, तो ये काफ़ी जगहों पे फिट इन बैठती है, और इसीलिए ये नज़म मुझे ज़्यादा पसंद भी है। और नज़म का है कि मेरे दिल मेरे मुसाफिर, हुआ फिर से हुक्म सादर, कि वतन बदर हो हम तुम, दे गली गली सदाएं, करें रुख नगर नगर का, कि सुराख कोई पाएं किसी यार नामा बर का। सरे कुए नाशनाइयां, हमें दिन से रात करना, कभी इससे बात करना, कभी उससे बात करना। हमें ये भी था गनीमत जो कोई शुमार होता, हमें क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। It's a very strange situation. How was my interaction with the psychiatrist at that time? In fourth year MBBS, a group of friends, about 9 of us, we thought of taking out a journal, एक मैगजीन कॉलेज का निकालें, और उस कॉलेज के मैगजीन का नाम एस्पिरेशंस था, जो रखा गया 9 लोगों ने मिलकर। और उस मैगजीन को बनाने के लिए जो कोशिश करनी थी कि पैसे कहाँ से आएंगे, प्रिंट कहाँ से होगा, उस सिलसिले में फोर्थ ईयर एमबीबीएस में उस वक्त साइकियाट्री सिर्फ फाइनल ईयर में पढ़ाई जाती थी, उससे पहले बिहेवियर साइंस या उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। उसके लिए हमने, हमारे एक साथी ने, अल्लाह जन्नत नसीब करे, प्रोफेसर रशीद चौधरी साहब, जो कि फाउंटेन हाउस के उस वक्त बानी थे, उनसे राब्ता किया और उस एस्पिरेशन मैगजीन को निकालने में उनकी हेल्प ली। सो हमें पहली दफा इत्तेफाक हुआ कि हम किसी मेंटल इंस्टीट्यूशन जो कि फाउंटेन हाउस था वहां जाएं। और जब मैं वहां पहुंचा तो हम सारे दोस्त इकट्ठे थे, 9-10 लोग थे, कुछ लड़कियां थी एफजे की, वो भी एस्पिरेशंस के एडिटोरियल में थी। सो हम सारे कुछ 12-14 लोग वहां पहुंचे, तो हमें कहा गया कि जी आप फाउंटेन हाउस के कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ जाइए, और कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ जाएं तो आप, अब वो चौधरी साहब अभी आते हैं। तो जब हम कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ गए और कॉन्फ्रेंस रूम में अंदर एंटर हुए, तो वहां पे एक साहब बैठे हुए थे जिन्होंने एक
बड़ी ब्रिटिश स्टाइल की फेल्ट हैट पहनी हुई थी और एक लंबा कोट पहना हुआ था और कायदा ब्लैक कलर की शर्ट जस्ट लाइक माइन, और वो सारा तैयार होके वो बैठे हुए थे. सो मोस्ट ऑफ द पीपल बिलीव्ड कि ये प्रोफेसर रशीद चौधरी साहब हैं, इंक्लूडिंग मी माई सेल्फ. और हम सारे बड़े तमीज से वो कॉन्फ्रेंस टेबल के इर्द गिर्द कुर्सियों पर जाके बैठ गए और उन्होंने कहा, हाँ जी आप लोग कैसे तशरीफ लाए. तो वो एक डॉक्टर साहब जो थे उन्होंने कुछ बताना शुरू किया. तो उन्होंने कहा कि जी ये मकसद, कहते हैं अच्छा 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 ये तो कोई ऐसी बड़ा काम नहीं है. और देन ही स्टार्टेड टॉकिंग जनरली एज इफ एवरीथिंग विल गो वेल. सडनली पीछे से बाहर से एक साहब आए और उन्होंने कहा कि रशीद चौधरी साहब जो है ना अभी 10 मिनट में आते हैं. सो देन वी वर सरप्राइज कि ये कौन है, अगर ये वो रशीद चौधरी साहब ये नहीं है तो ये कौन है. तो पता चला कि वो एक पेशेंट है. और जब उससे थोड़ी सी मजीद गुफ्तगू हुई तो उसको पूछा गया कि आप फाउंटेन हाउस में क्यों एडमिट हो गए. तो उन्होंने कहा कि जी मेरे घर वालों ने कहा पागल है. तो मैंने कहा पागल तो पागल सही, और मैंने सारी खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए घर के, तो वो मुझे फाउंटेन हाउस ले आए. That was the first encounter I ever had about a psychiatric patient. So the communication, उठना बैठना बातचीत कपड़े हर चीज उसकी A1 थी, सिवाय इसके कि जब उसकी सोच से डिटेल में जाएं तो पता चलता था कि सोच में कुछ मसाइल है. बहरहाल वो रशीद चौधरी साहब आए और हमने वो मैगजीन निकाला. उसके बाद साइकियाट्री से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं रहा. एक और वाकया जो अक्सर मैं अपने शागिर्दों को सुनाता हूँ, लेकिन वो मैं यहाँ कोट नहीं करूँगा, नॉट बिकॉज आई डोंट वांट टू बट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि मुझे ये फील होता है कि मैं किसी के भी खिलाफ या बुरी बात किसी के लिए कहना नहीं चाहूँगा. तो इसीलिए वो वाकया कोट नहीं करूँगा. लेकिन उस जमाने में साइकियाट्री का सिर्फ एक क्वेश्चन कंपल्सरी होता था और हमारा साइकियाट्री का एक्सपोजर जो था वो प्रैक्टिकली ना होने के बराबर रहा अंडरग्रेड लेवल पे. अब और उस वक्त के बाद जब मैं साइकियाट्रिस्ट बन गया और मैंने बाकायदा तौर पे अपने करियर का आगाज किया, तो मैंने अपने दिल में सिर्फ एक चीज सोची कि मैं साइकियाट्री के इमेज को चेंज करूंगा. और अल्लाह जन नसीब करे मेरे उस्ताद प्रोफेसर मुबशर साहब जब वो बिहेवियरल साइंसेस इंट्रोड्यूस हुई तो उससे पहले वो वाइस चांसलर लगे यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस के, तो वो हर हफ्ते में 1 या 2 दिन हमें अपने पास बुला लेते थे और वो बड़ी डिस्कशन इस पे हुई कि कैसे साइकियाट्री का इमेज को बेहतर किया जाए. उस वक्त फिर ये आइडिया आया कि जी बिहेवियरल साइंसेस का सब्जेक्ट, और मोहद्दद राना साहब और दूसरे लोगों ने मिलकर बिहेवियरल साइंसेस का एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया. कुछ मेरी भी उसमें थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन है. और बिहेवियरल साइंसेस के सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने का मकसद वाहिद ये था कि थोड़ा सा स्टूडेंट्स में आगाही पैदा हो कि ये भी कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज हैं बिसाइड्स अदर सब्जेक्ट्स. और फिर बिहेवियर साइंसेस जब हमने पढ़ाना शुरू किया तो ऑब्वियसली साइकियाट्री का इमेज आपको भी पता है चेंज हुआ. सो मेरा एक्सपोजर अंडरग्रेड लेवल पे तो साइकियाट्री का इतना ही है. अगला आप क्वेश्चन पूछें फिर आगे बात करते हैं. सर फिर हम अंडरग्रेड से आगे चलते हैं. फिर ग्रेजुएशन किया आपने, उसके बाद देन हाउ डिड यू डिसाइड कि ये साइकियाट्री ही है व्हिच आई वांट टू परस्यू. राइट. अब ये भी एक अजीब दास्तान है. मैं उसको दास्तान इसलिए कहूंगा कि बहुत सारी चीजें कहानी की तरह लगती हैं, लेकिन आई होप इट विल इंटरेस्ट यू. वो एक छोटी सी नज़म है कि मोहब्बत रूठ जाए तो इसे बाहों में ले लेना, बहुत ही पास करके तुम इसे जाने नहीं देना, वो दामन छुड़ाए तो इसे तुम कसम दे देना, दिलों के मामले में तो खताएं हो ही जाती हैं, तुम इन खताओं को बहाना मत बना लेना, मोहब्बत रूठ जाए तो इसे बाहों में ले लेना. ये एक्सप्रेशन है मेरा साइकियाट्री के लिए. और साइकियाट्री का दामन जब मैंने पकड़ा, सोच समझ के पकड़ा. जनरली इमेज ये है कि साइकियाट्री में पैसा नहीं है,
ठीक है, अब ये बात बड़ी बेवकूफाना और अजीब सी लगती है, लेकिन ये मैं जरूर करूंगा कि साइकियाट्री में पैसा नहीं है। आप लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के किसी साइकियाट्रिस्ट को भी मिल लें, पैसा बेशुमार है। ये प्राडो के कफलिंग्स, ये रोलेक्स की घड़ी, मर्सिडीज, ऑडी, रेंज रोवर गाड़ियां जो घर के बाहर खड़ी हैं, ये सब इसी स्पेशलिटी की मरहूने मिन्नत है। और ये बहुत कम है, इससे भी कहीं ज्यादा लोगों के पास इस प्रोफेशन में पैसा है। सो अगर आप इस प्रोफेशन को इस वजह से नहीं अपनाते कि इसमें फाइनेंशियल गेन्स कम है, तो ऐसा कतई नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इस प्रोफेशन में आने के लिए, रादर किसी भी प्रोफेशन में आने के लिए, किसी भी स्पेशलिटी में जाने के लिए, जो एक चीज दरकार है वो है पैशन। आपके अंदर अगर पैशन हो तो सब कुछ ठीक है, और अगर आपके अंदर पैशन नहीं है तो जो सैकड़ों लाखों डॉक्टर बन रहे हैं हर साल, उन्हीं में आप भी उसी समुंदर में गर्क हो जाएंगे। उन डॉक्टरों में से सिर्फ चंद लोग जो पैशन वाले हैं, वही प्रोफेसर गर्देजी बनते हैं, वही प्रोफेसर गोंदल बनते हैं जो वाइस चांसलर लगते हैं। कितने लोग वाइस चांसलर लगते हैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के? लाखों डॉक्टर बन रहे हैं, उनमें से कितने? एक। सो अगर पैशन नहीं है अपनी स्पेशलिटी का, जो भी आप चूज करना चाहें, वो बात की बात है, उसके बारे में बात करेंगे, तो आप उस समंदर में गर्क हैं। और अगर पैशन है तो चाहे आप जनरल प्रैक्टिस कर लें, आप उसमें भी टॉप नॉच पे आएंगे। चाहे आप यूएसएमएलई करके अमेरिका में सेटल हो रहे हैं, वहां पे भी आप टॉप नॉच में आ जाएंगे। और अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, सर्जरी, गायनी, मेडिसिन कुछ भी कर रहे हैं, पैशन है तो टॉप नॉच है, पैशन नहीं है तो गर्क है। ये बात ध्यान में रखिएगा। सो मेरी कहानी इस तरह हुई कि मैंने जब ग्रेजुएशन की तो हमें तो उस जमाने में गाइड करने वाला कोई नहीं था। ये तो इंटरनेट का और कोविड के बहुत सारे नुकसानात में से एक भला हो कोविड का, कि कोविड ने इस नेट के जरिए जो कम्युनिकेशन को आसान कर दिया, दैट वाज ट्रेमेंडसली वर्दी। सो ग्रेजुएशन के बाद हमने हाउस जॉब की, और उस जमाने में हाउस जॉब में 1500 रुपए महाना मिला करते थे, और उस हाउस जॉब के पैसों में अक्सर लोगों का गुजारा नहीं होता था। हमें हाउस जॉब मिली सर्जिकल स्पेशल में पहली रोटेशन। हमने कहा हमने सर्जिकल स्पेशल में नहीं काम करना, हम तो बेस्ट जो सर्जिकल यूनिट है वहां काम करेंगे, चाहे वो 1500 रुपए हमें जो है ना वो छोड़ने पड़े। और हमने ये किया। सो हमने वो छोड़ा और हम सर्जिकल यूनिट 2 सर्विसेज का उस वक्त जो टॉप मेरिट वाला था उसको हमने जाके ज्वाइन कर लिया ऑनरेरी। वहां पे हमारे प्रोफेसर हसन अस्करी साहब थे, अब्बास अस्करी साहब, माशाल्लाह ही वाज अ जेम ऑफ अ पर्सन। और ताहिर अहमद शाह शायद आप लोगों ने सर्जन का नाम सुना होगा, डॉक्टर्स हॉस्पिटल में पिछले साल भी बेचारे अल्लाह तकरीक रहमत करे हमसे बिछड़ गए। सो वो वहां पे टीए शाह साहब एसोसिएट प्रोफेसर थे और अस्करी साहब, तो हमने सर्जरी शुरू की। और हमारे साथ जो मेडिकल ऑफिसर या रजिस्ट्रार्स थे उनके साथ अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रिलेशनशिप बना। सारी सारी रात हमने इमरजेंसी में सर्जरीज करनी और हमारे एमओस ने हमें सिखाना। तो हमारा पैशन ये हो गया कि हम सर्जन बने, और हमने कहा कि हम तो सर्जरी ही करेंगे और सर्जन ही बनेंगे। फिर उसके बाद हमारी मेडिसिन की रोटेशन आई, तो मेडिसिन की रोटेशन में भी हमने अच्छे यूनिट में मेडिसिन में हाउस जॉब की। और जब 6 महीने मेडिसिन और सर्जरी की हाउस जॉब खत्म हो गई तो कुछ लड़के यूएसएमएलई के चक्कर में पड़ गए, और बाकी इधर उधर अपने जो अंडर ग्रेजुएट के हमारे साथी थे वो इधर उधर शामिल हो गए। उनमें से 6 लोगों ने सीएसएस कर लिया, सीएसएस का इम्तिहान देने के लिए चले गए। पीछे से 9 का ग्रुप था हमारा, उसमें से 6 सीएसएस में चले गए और बाकी रह गए 3।
3 मेडिसिन में रह गए, नहीं सॉरी 5 सीएसएस में गए, 4 मेडिसिन में रह गए। एक लाहौर से बाहर का था, वो अपने रास्ते को चल पड़ा। 2 ने यूएसए में ली कर ली, वो अमेरिका चले गए। अकेला मैं पूरे ग्रुप में से लाहौर में बचा और कोई गाइडेंस नहीं कि क्या करना है। उस जमाने में सबने कहा जी कि सरकारी नौकरी बहुत जरूरी है, तो सरकारी नौकरी लग जाए तो सब कुछ ठीक हो जाता है। सो हमने पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान दिया, उसमें सिलेक्शन हो गई। उन्होंने बीएचयू लगा दिया। कंपल्शन थी कि 2 साल आपने पेरीफ्री करनी है। तो वो सर्जरी कहाँ गई और सर्जरी का पैशन कहाँ गया। तो मेरे जो सीनियर रजिस्ट्रार थे, अज़म जाफरी उनका नाम है, वो प्रोफेसर ऑफ यूरोलॉजी, रिसेंटली न्यू में शायद कहीं लगे थे, मुझे नहीं पता रिसेंटली वो कहाँ है। तो उनके साथ एक दिन वैसे ही मैं कहीं जा रहा था, तो रास्ते में मुझे नजर आ गया, तो मैं आवाज दी, वो रुक गए। ओए तू किधर फिर रहा है? मैंने कहा सर बस इधर उधर ही ख्वारी कर रहे हैं, बीएचयू वगैरह में नौकरी शौकरी। तो मैंने कहा समझ नहीं आ रही, चला चाय पीते हैं। वो एक खोके पे हम लोग बैठ गए, उन्हें चाय पीनी शुरू कर दी, तो उनके साथ बातचीत शुरू हो गई और बड़ी डिस्कशन हुई जनरली कि क्या करना चाहिए, आगे क्या होगा, किस तरह होगा। एकदम जहन में ख्याल आया कि साइकियाट्री कर ली जाए। और क्योंकि साइकियाट्री में पर्सनालिटी के हिसाब से बोला भी जा सकता है, सुना भी जा सकता है, तो मशवरा ये मिला कि तुम बोल अच्छा लेते हो, सुन अच्छा लेते हो, तो साइकियाट्री कर लो। अब साइकियाट्री का जो अंडर ग्रेजुएट का एक्सपोजर था और उसके बाद एमबीबीएस के बाद का एक्सपोजर जो था, वो कोई इतना अच्छा नहीं था। फिर उसके बाद हमने पूछना शुरू किया, तो उस जमाने में हमें मशवरा ये मिला कि अगर साइकियाट्री ही करनी है तो लाहौर छोड़ दो, पिंडी चले जाओ, क्योंकि मुबशर साहब वाहिद बंदे हैं पूरे पाकिस्तान में जो साइकियाट्री करवा सकते हैं, अदरवाइज कोई साइकियाट्री नहीं कराएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बात सच है या गलत है, बिकॉज अगेन मेरे बहुत सारे साथी लाहौर के सीनियर प्रोफेसर, लेकिन हमें ये मशवरा मिला। और जब हमें ये मशवरा मिला कि जी पिंडी चले जाओ और वहां जाके मुबशर साहब को ज्वाइन कर लो, तो ये भी हमारे लिए बड़ा अजीबोगरीब इत्तेफाक था। बहरहाल हमने हिम्मत की, अपनी बीओएचयू में इधर से ट्रांसफर करा के पिंडी ट्रांसफर कराई और पिंडी में एक दूर दराज के इलाके में बीएचयू में लगा दिया गया। फिर हम एक दिन अपने डीएचओ साहब के पास गए और उनसे रिक्वेस्ट की कि हमें किसी कोर्स पे भेज दें, जो साइकियाट्री का एक कोर्स होता है यहाँ पिंडी में, प्राइमरी हेल्थ केयर फिजिशियंस का, तो उसमें भेज दें। उन्होंने हम पे मेहरबानी की और हमें वो प्राइमरी हेल्थ केयर फिजिशियन का जो मेंटल हेल्थ कोर्स था, कम्युनिटी मेंटल हेल्थ प्रोग्राम का, वो डब्ल्यूएचओ का उस जमाने में बशीर साहब करवाते थे, उसमें हमारा उन्होंने नाम नॉमिनेट कर दिया। उस कोर्स में लोग ज्यादातर इसलिए जाया करते थे कि उसमें पैसे मिलते थे। सो तनख्वाह मेडिकल अफसर की उस वक्त कोई 5,500-6 हजार रुपए थी और उस कोर्स में 14,000 रुपए मिल जाते थे सिर्फ एक हफ्ते के अंदर। तो एक बहुत बड़ा इंसेंटिव था। सो उस इंसेंटिव को लेते हुए बहुत सारे लोग उस कोर्स में जाते थे, लेकिन हमें डीएचओ साहब ने कुछ पता नहीं, उनको मुझ पर तरस आ गया। वो भी आपके न्यू हॉस्पिटल के बहुत सीनियर मेडिकल सुपरिटेंडेंट वगैरह लगे रहे बहुत अरसा तक, बहुत अच्छे आदमी। उन्होंने हमें रहम खा के उधर भेज दिया, विच वॉज नाइस ऑफ हिम। और जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने वो कोर्स अटेंड किया, तो तीसरे दिन मुबशर साहब से मेरी मुलाकात हुई। और जब मेरी तीसरे दिन मुबशर साहब से मुलाकात हुई और उन्होंने इंटरेक्ट किया, वो जो भी कम्युनिटी के डॉक्टर्स थे सारे, जीपीज और प्राइमरी केयर फिजिशियन जैसे होते हैं, तो आखिर में उठते उठते मुझे कहते हैं तूने साइकियाट्री करनी है? मैं कहा जी सर। मैं तुझे लेटर दे रहा हूं, तू लाहौर चला जा सेक्रेटेरिएट में और उनसे ऑर्डर लिखवा के तो तू मेरे पास आ जा। और हमने कोई लफ्ज नहीं बोले, कोई डायलॉग नहीं बोले, कुछ कहा नहीं, चुप करके उनसे लेटर पकड़ा, क्योंकि हमारे तो वो अंदर से दिल की मुराद पूरी हो रही थी, क्योंकि हम तो पिंडी पहुंचे ही इस चक्कर में थे कि साइकियाट्री कर लें। सो हमने वो लेटर लिया और हम सेक्रेटेरिएट के धक्के खाने शुरू कर दिए। किसने लिफ्ट करानी थी? बहरहाल किस्मत ने कुछ साथ दिया, लोग कुछ मिलते चले गए और वो काम तकरीबन 6 से 8 महीनों में मटेरियलाइज हो गया और हम पिंडी में
साइकाइट्री में लैंड कर गए। सो ये मेरी साइकाइट्री में एंट्री की दास्तान थी जो मैंने आपको सुनाई। इसमें बहुत सारे और भी चीजें हैं, अगेन बहुत सारी बातें जो मैं नहीं बता सका, लेकिन फिर बताऊंगा। आगे चलते हैं, प्लीज गो अहेड। सर फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर फ्री टू टेल व्हाटएवर यू वांट। हमारे पास कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप जब तक बोलना चाहें यू आर मोस्ट वेलकम टू टॉक। वो आप लोगों के पास टाइम नहीं, लेकिन बच्चे जो है ना, वो ये ना हो कि मुझे गोली मारने पे आ जाए कि जाए यहाँ से। एनीवे, आई विल ट्राई टू बी एज प्रिसाइज एज पॉसिबल, प्लीज। हाँ, आई एम प्रीटी श्योर एवरीवन इज एंजॉयिंग दिस अ लॉट। लेकिन है हम आगे चलते हैं तो सर आपका, क्योंकि आपने बताया कि पिछला अंडर ग्रेजुएट एक्सपीरियंस कोई बहुत अच्छा नहीं था, तो फिर जब आप साइकेट्री में एंटर हो रहे थे तो आपकी कोई एक्सपेक्टेशंस होंगी इस फील्ड से, कि वो क्या एक्सपेक्टेशंस थी जिनके साथ आप एंटर हुए, और फिर वर दे मेट और दे वरंट मेट? अच्छा, फिर मैं हर ब्रेक के बाद एक शेर से शुरू करता हूं। तो एक पंजाबी का काफिया है, कोई फाल निकाल करिश्मा गर, मेरी रूह विच फुल गुलाब आण, कोई पानी फूक दे ऐहो जिहा, ओ पिए ते मेरे ख्वाब आण, किसी ऐसी राह पर डाल मुझे जिस राह से वो दिलदार मिले, कोई तस्बी दम दुरूद दे बता, जिसे पढ़ूं तो मेरा यार मिले। तो जब हम साइकाइट्री में एंटर हुए, तो साइकाइट्री में आने के बाद ऑब्वियसली एक एब्सोल्युटली न्यू एवेन्यू फॉर मी। जब व्हेन यू आर नॉट एक्सपोज्ड टू इट एट एन अंडरग्रेजुएट लेवल, things are different. Things are very different. So you have to start from the beginning. And people were studying and reading and they're giving part 1 and FCPS and all that stuff, and I was confused. So it took me a year before I was able to swallow and उसको मैं हजम कर सकूं अपने अंदर कि ये मैंने अब स्पेशलिटीज को, इसको जो है ना वो पढ़ के आगे इम्तिहान देना है। पैशन तो डेवलप हो गया था और दिमाग में आ भी गया था कि साइकाइट्री करनी। और साइकाइट्री तो मुबशर साहब मुझे कहते थे ये हार्ले स्ट्रीट डॉक्टर है, और उन्होंने ये लफ्ज हार्ले स्ट्रीट डॉक्टर का मुझे इसलिए दिया था, लकब दिया था कि उस जमाने में भी हमें अच्छे कपड़े पहनने का और अच्छी गाड़ियों में फिरने का शौक था। पैसे तो जेब में थे नहीं, और पैसों की इंतहा ये बताऊं कि जब आप डॉक्टर बन जाते हैं तो घर वालों की ये एक्सपेक्टेशन होती है कि जी अब डॉक्टर बन गया है, शादी हो गई है, तो पैसे कमाएगा, अपना गुजारा करेगा। और हालत ये थी अंदर से कि एक वाकया आपको सुनाऊं कि मेरा दोस्त, मेरे बेटे को भी शायद ये बात पता ना हो, आज पहली दफा ये बात डिस्क्लोज हो रही है। मेरा बेटा मेरे साथ था 2-3 साल की, और मैं वार्ड से निकला, साइकाइट्री वार्ड से ड्यूटी के बाद 6 बजे शाम का टाइम था। तो मैं जब वार्ड से निकला तो बेटा मेरे साथ था और मेरी जेब में 10 रुपए थे। और मेरे लिए ये फैसला करना मुश्किल हो रहा था। घर मेरा 6 किलोमीटर दूर था और मुझे ये फैसला करना था कि ये 10 रुपए का मैं रिक्शा ले लूं और बेटे के साथ घर चला जाऊं, या मैं पैदल घर जाऊं और उस 10 रुपए से रोटियां बाजार से लेके अपना बीवी का और बच्चे का मैं खाना कर लूं। सो दैट वाज द ऑप्शन। सो आई डिसाइडेड टू वॉक। सो वो 3 साल का बच्चा बेचारा कितना चलता, वो कभी उसको कंधे पे बिठाऊं, कभी नीचे उतार दूं, कभी कंधे पे बिठाऊं, कभी नीचे उतार दूं। लेकिन बहरहाल वो 6 किलोमीटर का फासला हमने तय किया, हम घर पहुंचे, हमने उस 10 रुपए से रोटियां खरीदी और हमने बैठ के खाना खाया। इस तरह अब डायलेमा ये कि एक तरफ तो आप डॉक्टर बन गए, दूसरी तरफ आप स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, तीसरी तरफ खाने को पैसे नहीं, राइट? और घर है तो घर वालों का, गाड़ी है तो घर वालों की, उसमें पेट्रोल डलवाना है तो उसके लिए पैसे नहीं है, और एक गाड़ी बेगम ने भी काम करना है, आपने भी काम करना है, वो जाएगी कि मैं जाऊंगा, वो भी डायलेमा। अब ये सारी मसाइल मेरे ख्याल से उस जिंदगी का, उस वक्त का हिस्सा है। सुख शायद कोई मेरे साथ अनयूजुअल नहीं हुई,
ये शायद सारे डॉक्टर साहब अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम अ रीजनेबल बैकग्राउंड, जैसे एवरेज मिडिल क्लास के लोग पाकिस्तान में होते हैं, घर है, गाड़ी है, टीवी है, वाले साहब सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज में भी गाड़ी में चले जाया करते थे 3rd ईयर से ऑनवर्ड्स। लेकिन जब आप इस स्टेज पे आते हैं कि आपकी शादी हो गई, आप इंडिपेंडेंट हो गए और आप स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, तो एक्सपेक्टेशन ये होती है कि आपके पास पैसे होंगे, जो कि नहीं होते, राइट? अब तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह कि अब रेजिडेंट को 60-70 हजार रुपए मिल जाते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि उस जमाने के 5-6 हजार, इस जमाने के 60-70 हजार बराबर ही है। एंड ऑफ द डे ये 60-70 हजार में भी रेजिडेंट बेचारा उसी कसमा पुरसी के आलम में होता है जिसमें होते हैं ज्यादातर लोग। बहरहाल साइकाइट्री, लेकिन वो इंसिडेंट मैंने इसलिए कोट किया कि ये मुश्किल औकात, ये मुश्किल मरहले शायद हम सब की जिंदगी पे आएंगे, एक टर्निंग पॉइंट होगा जहां पे ये होगा। स्पेशलिटी अगेन, जैसे मैंने पहले कहा ना कि अंडरग्रेड लेवल पे आप इंप्रेस होते हैं सर्जन से, उनकी गाड़ियों से, उनके पैसे से, गायनाकोलॉजिस्ट के पैसे से। जड़ी कड़ी में पूछो गायनी से जाना, भाई क्यों जाना तू गायनी से? जी घर वाले कहते हैं तुम्हारे लिए गायनी ही बेहतर है। क्यों बेहतर है गायनी तुम्हारे लिए? बस घर वालों ने कहा है कि लेडी डॉक्टर है तो गायनी नहीं आती, तो फिर तो वो लेडी डॉक्टर ही नहीं। Which is a strange phenomena कि अगर लेडी डॉक्टर है तो उसको गायनी नहीं आती। दिस इज वेरी स्ट्रेंज, विच इज ट्रू, आई एग्री। जैसे मैं अपनी माँ को, जब तक मैं सीनियर रजिस्ट्रार साइकाइट्री में नहीं लग गया, मैं अपनी माँ को ये नहीं बता पाया कि मैं स्पेशलाइजेशन किस सब्जेक्ट में कर रहा हूँ। जब मेरा FCPS हो गया और मैं SR लगा तो मैंने अपनी माँ को पहले भी बताया, उन्होंने कहा स्पेशलाइजेशन हो गई? हाँ हो गई। किस में हो गई? मैंने कहा जी साइकाइट्री में। तो उन्होंने कहा क्या मतलब? मैंने कहा जी साइकाइट्री, जो कहते हैं वो जो पागलों वाले डॉक्टर होते हैं। मैंने कहा जी हाँ वो पागलों वाले डॉक्टर होते हैं ना, उसी में मैंने स्पेशलाइजेशन कर ली। तो दिस वाज प्रैक्टिकली स्टिग्मा, इट इज प्रॉब्ली स्टिल अ स्टिग्मा कि हम गायनी, सारी लेडी डॉक्टर, क्योंकि लेडी डॉक्टर है तो गायनी करनी है। सारे मेल डॉक्टर हैं तो वो फिजिशियन बनेंगे या सर्जन बनेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं है। ऐसा तो नहीं है। There are so many other things। और मैंने जैसे पहले कोट किया और दोबारा कोट कर रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लाहौर में नजर उठा के देखें, आपको कोई साइकाइट्रिस्ट फारिग नहीं मिलेगा। वो अल्लाह जन्नत नसीब करे। हमारे प्रोफेसर मुबशर साहब, उनको बार बार मैं कोट करता हूँ क्योंकि जाहिर है मेरे उस्ताद थे और बहुत कुछ वो ट्रेनिंग के दौरान बोलते थे जो ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाता था। वो कहते थे किसी घर में बच्चा हो ना हो, एक पागल जरूर होता है। अब ये एक शायद बड़ा डेरोगेटरी किस्म का कमेंट हो, लेकिन ये है। सो पैशन लीड्स यू टू थिंग्स। और मैंने साइकाइट्री जब वहां से FCPS का इम्तिहान दिया और पार्ट 1 किया, तो पार्ट 1 मेरा काफी मुश्किल से हुआ। और मुश्किल से इसलिए हुआ कि उसमें साइकाइट्री की बैकग्राउंड नहीं थी। बहुत सारे बच्चे अभी आजकल ऐसा होता है कि वो US जाते हैं और US जाके USMLE दे के जब वहां पहुंचते हैं तो उनको मैच नहीं मिल रहा था तो वो साइकाइट्री में चले जाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर वर्च्यू ऑफ बीइंग कि किसी और जगह पे मैच नहीं आ रहा, चलो साइकाइट्री में भी साइकाइट्री कर लेते हैं। और ये हमारे पाकिस्तान में भी होता है कि बहुत सारे बच्चे क्योंकि कुछ नहीं हो पा रहा तो चलो साइकाइट्री कर लेते हैं। नो, पहली दफा जब बच्चा मेरे पास आता था मुझसे यही पूछता हूँ कि भाई साइकाइट्री चूज क्यों की थी? और जब वो मुझे कहता है कि जी साइकाइट्री इसलिए चूज की थी कि जी वो सर्जरी में जॉब नहीं मिली थी, या वो गायनी में काम नहीं मिल रहा था, या रोटेशन नहीं आई थी, दैट इज नॉट एट ऑल द वे टू गो फॉर इट। बात तो वो है कि आप पैशनेट होके चूज करें और फिर इस पे लगें, तो फिर तो हिम्मत भी आती है, पैसा भी आता है, चीजें भी आती हैं, अदरवाइज नहीं आता। बहरहाल FCPS किया और पार्ट 2 का इम्तिहान से पहले वापस घर आ गया और लाहौर वापस आ गया और अपने उस्ताद के रोकने के अगेंस्ट, वो भी बड़ा अजीब सा किस्सा है, वो भी सुना दूं आपको कि अब मुझे लाहौर वापस आना था
क्योंकि मेरा होम टाउन लाहौर था और सर्विसेज हॉस्पिटल में मेरी हाउस जॉब और अल्लामा इकबाल का मैं ग्रेजुएट, तो मुझे लाहौर वापस पहुंचना था पिंडी से। और मुबशर साहब का ये ख्याल था कि जब तेरा FCPS हो जाएगा उसके बाद 1-2 साल तुम यहाँ पे मेरे साथ काम करोगे, फिर तुम कहीं जाओगे। तो वो किसी मीटिंग पे मुल्क से बाहर गए 2 हफ्ते के लिए। तो हमारे बड़े सीनियर मोहसिन, मेरे उस्ताद, मेरे अगेन मेंटर, उनके जो नीचे असिस्टेंट प्रोफेसर थे उस वक्त, प्रोफेसर फरीद मिन्हाज साहब, माशाल्लाह ही इज अ डायनामिक पर्सनालिटी, उनके साथ ताल्लुकात अच्छे थे। तो उनके पास जाके डिस्कस किया कि जी सर मैं पिंडी नहीं रह सकता, मैं तो यहाँ पे किराए के मकान पे रह रहा हूँ और हालात बहुत बुरे हैं फाइनेंशियली, सो आई वांट टू गो बैक टू माय होम सिटी वेयर आई कैन बी कंफर्टेबल विद माय फैमिली, माय पेरेंट्स, माय ब्रदर, माय सिस्टर। तो जॉइंट फैमिली का होता है साथ का, तो बस जो कष्ट काटना था काट लिया, अब जाना है वापस। एंड ही अंडरस्टूड इट वेरी वेल, और उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरी तरफ से तुम्हें कोई रुकावट नहीं है, यू कैन गो। लेकिन मुबशर साहब जब वापस आएंगे तो फिर थोड़ा मसला हो सकता है, तो वो कैसा करना है। अब वो एक बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी कि उनको कैसे हैंडल करना पड़ेगा। बहरहाल हमने फरीद साहब से साइन वाइन कराए और हमने वहां से रिलीफ लिया और लाहौर में सर्विसेज हॉस्पिटल आके वापस ज्वाइन कर लिया। वो दिन, और अल्लाह जन्नत से करे जब तक वो इस जहां से फानी में से रुखसत नहीं हुए, उन्होंने ये बात भूले नहीं कि तू मेरी मर्जी के बगैर पिंडी से वापस आ गया था। खैर, मोहब्बत थी उनकी, ओन करते थे, और पैशन जाहिर है उनके अंदर भी साइकियाट्री का बहुत था। तो जब लाहौर में आया और मैंने लाहौर में आके FCPS का एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में, थ्योरी भी क्लियर हो गई, वाइवा भी क्लियर हो गया और साइकियाट्रिस्ट बन गया मैं। और फिर साथ ही मुझे सीनियर रजिस्ट्रारशिप मिल गई। और उस जमाने में हमारे जो प्रिंसिपल थे सर्विसेज के, वो एक सर्जन थे, और प्रोफेसर फैसल मसूद, शायद आप सबने उनका नाम सुना होगा, उनका भी बड़ा नाम है। प्रोफेसर फैसल मसूद वाज द प्रोफेसर ऑफ मेडिकल यूनिट 4 देयर। तो मैं SR था और मैं ऐसे ही किसी काम से फैसल साहब के पास गया। मेरे जो प्रोफेसर थे उन्होंने भेजा कि फैसल साहब के पास ये चले जाओ और बात कहने रहा। तो मैं फैसल साहब को मिलने गया, तो he was professor of medicine, obviously he was a big guy उस वक्त जमाने में। फैसल मसूद साहब का बड़ा टैका और रोब और दबदबा, और जो लोगों को इनकाउंटर है उनका पता है कि फैसल मसूद साहब वाज अ वेरी डायनामिक काइंड ऑफ अ पर्सन, वेरी हाइपर एक्टिव एंड डायनामिक, और माशाल्लाह बहुत काम करने वाले। तो मैं जब उनके ऑफिस में गया तो मुझे कहने लगे कि बातचीत हुई, उन्होंने मुझे सुना वगैरह, और मुझे कहने लगे तुम अगले ट्यूसडे को 10 बजे मेरे साथ कॉफी पीना। It was really something for me as a junior most psychiatrist in the community. तो मेरे लिए वो बहुत एजाज की और बड़ी बात थी कि एक प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन, जो उस जमाने में भी बहुत मशहूर आदमी था, वो मुझे चाय पे बुला, और उसने कहा कॉफी पीना मुझसे। और मैं अगले मंगल को जनाब वार्ड से 10 बजे पूरे निकल के सीधे फैसल साहब के कमरे के बाहर, एंड ही नेवर मेड मी वेट देयर। जैसे ही मैं पहुंचा हूं वैसे ही मुझे पता चला कि वो बुला रहे हैं अंदर, और मैं चला गया अंदर। सो ही न्यू इट कि उन्होंने टाइम दिया हुआ था, और मैं उनके साथ जाके बैठ गया। और फैसल मसूद साहब के साथ मेरा बहुत लंबा टाइम अपने करियर का गुजरा। मैं सीनियर रजिस्ट्रार उनकी लीडरशिप में लगा, एक असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, और लास्ट स्टेप जो मेरा प्रोफेसरशिप का था वो सिर्फ उनकी एब्सेंस में हुआ, लेकिन टेन्योर मेरा सारा वो भी उनके साथ ही गुजरा। सो साइकियाट्री, एज अ साइकियाट्रिस्ट, लोग समझते हैं शायद पीछे रह जाएंगे, वो रिकग्निशन नहीं होगी, वो एक्नॉलेजमेंट नहीं होगी। सवाल बचे, सॉरी मैं तुम्हारा भूल गया, मैं अपनी कहानियों में लग गया। सवाल अगर मैंने जवाब दे दिया है तो ठीक है, अगर जवाब नहीं दिया तो दोबारा पूछ लो। नहीं सर, यू आर गोइंग एब्सोल्युटली फाइन। हम बेसिकली आपकी जर्नी सुन रहे हैं, तो यू कैन गो वेयरएवर यू वांट टू गो। सो कोई अगला सवाल पूछना है तो पूछो, नहीं तो मैं कंटिन्यू करूं। सर आप कंटिन्यू करें प्लीज। ओके,
मेरे इस मुझे नहीं पता ये जो फोरम आपका है इसमें दो मेरे शागिर्द, मेरा ख्याल है कि मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आए। एक वो जो अंडर ग्रेजुएट को जिसको मैंने पढ़ाया, सो जैसे आप हैं, सो एज अ प्रोफेसर ऑफ साइकाइट्री मैंने जो अंडर ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट्स को पढ़ाया, और उसने फिर बच्ची ने साइकाइट्री ऑप्ट की। एक मैंने उसको रिक्वेस्ट की थी कि जरूर आ जाना। आई होप शी इज हियर, महानूर। Okay, you are here, right, Manur? Yes, sir, Manur is here. I can see. Yes. Okay. Yes, sir. So she was my undergrad student, and she chose psychiatry after I left Pakistan and came to this place. So इससे जरूर कमेंट लूंगा मैं before I proceed, लेकिन इससे कमेंट लेने से पहले मैं फिर एक छोटी सी गजल के दो चार शेर सुनाऊंगा। छोटी सी तो नहीं है, बहुत लंबी, लेकिन दो चार शेर सुनाऊंगा। कहते हैं, कुछ खुद भी थे अफसुर्दा से, कुछ लोग भी हमसे रूठ गए, कुछ खुद ही जख्म के आदी थे, कुछ रिश्ते हाथ से छूट गए, कुछ खुद भी इतने मोहतात ना थे, कुछ लोग भी हमको लुट गए, कुछ तल्ख हकीकतें इतनी थी कि ख्वाब ही सारे टूट गए। पाकिस्तान से जब मैं निकला हूं तो हालात इस किस्म के थे कि वहां राह जा नहीं पा रहा था और आने का दिल नहीं था, और अभी भी हालात ये हैं कि दिल ये है कि बस उड़ के वहां पहुंच जाए। खैर, इस बारे में मजीद बात करूंगा। लेट्स हैव अ महानूर व्यू पॉइंट के when how you came in psychiatry, you told me that you were my student, so जाहिर है आपकी क्लास में 100 बच्चे बैठे हुए हैं तो 100 के 100 तो आपको याद नहीं रहते, लेकिन वो बच्चा जरूर याद आ जाता है जिसने आपकी स्पेशलिटी को परसू कर लिया। सो मानूर ने जब मुझे बताया तो मुझे कुछ चीजें याद आनी शुरू हुई कि वो मैंने इसको बुक दी तो इसने कहा जी वो मुझे नहीं मिली थी, और वो सारे वाकयात मुझे याद आए। सो मैं इससे कहूंगा थोड़े से फीडबैक दे कि क्यों साइकाइट्री में आई, फिर मैं आगे चलता हूँ। Okay, sir. Thank you so much, sir. I feel really honored कि आप मेरे से ये क्वेश्चन कर रहे हैं, and I feel lucky कि मैं अपने जूनियर्स और फेलोज के साथ ये चीजें शेयर कर रही हूँ। There might be a little signal problem, so अगर इशू हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। I hope आप लोगों को मेरी आवाज आ रही होगी ठीक। अच्छा, so why I chose psychiatry? सर, मेरी तो कोई ऐसी ड्रामेटिक स्टोरी नहीं है जैसी आपकी है। It was like a very smooth जर्नी, और हुआ एक्चुअली ये था। एंड बाय द वे, इट्स योर हम्बलनेस अगर आप कह रहे हैं कि मैं आपको याद आ गई, बट आई नो ऐसा नहीं है। I was just an average student among the other 200 students. So this goes back to my first year MBBS in 2012, और तब I didn't know about psychiatry at all. मुझे कोई इतना आइडिया नहीं था psychiatry क्या होती है, और it was our first behavioral sciences lecture, और आप वो lecture लेने आए, and then I thought जब आप आए कि wait, who is he? वैसे मैंने नहीं, सिर्फ ये हमारी पूरी क्लास ने एक्चुअली ये सोचा था। My all fellows will agree at this. We were highly impressed by your charisma, by your communication, and the way you conveyed to us the importance of this subject. So मैं अक्सर लोगों को, अपने साथ वाले लोगों को कहती हूँ कि अगर एक पिन ड्रॉप साइलेंस एक टर्म होती है तो वो मैंने आज तक सिर्फ आपके लेक्चर में पूरी होते हुए देखी है। So there was a pin drop silence in our class always during your lectures, and there was a little trick that you used to play जो मुझे अब समझ आई है कि आप हमारा लेक्चर सिर्फ 20 मिनट्स तक रखते थे। So you said कि स्टूडेंट्स का अटेंशन स्पैन सिर्फ 20 मिनट्स का होता है, लेकिन वो हम इतना आपके लेक्चर में गर्क हो जाते थे कि फिर हम हमेशा अगला लेक्चर सुनने के लिए मतलब मजीद एंथुसियाज्म से आते थे। So we never used to miss that. So मेरी साइकाइट्री चूज करने में one of the major reasons मतलब आप थे,
और फिर मुझे तब ये बात रियलाइज हुई कि एक टीचर और मेंटोर कितना बड़ा पार्ट प्ले कर सकता है फॉर हिज स्टूडेंट्स, and that means a lot to me and I owe you a lot. And I know I was an average student, मेरा आपको नहीं पता था लेकिन मुझे पता था आपका, so I chose psychiatry because of you first of all. उसके बाद जब थर्ड ईयर में I like we had the subject of behavioral sciences, हमने वो पढ़ा. उसके बाद आई ऑलवेज से कि 5 साल में मैंने जो सबसे ज्यादा सब्जेक्ट एंजॉय किया, जिसका एग्जाम देना, जिसका वाइवा देना, दैट वाज ऑफ बिहेवियरल साइंसेस. यू नो आई रियली लाइक दैट कम्युनिकेशन जो हम उस वाइवा में करते थे, एंड आई वाज ऑलवेज फैसिनेटेड कि हम इसी चीज को रियल लाइफ प्रैक्टिस में किस तरह अप्लाई कर सकते हैं. बिकॉज फॉर मी पेशेंट और जो डॉक्टर का रिलेशनशिप है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और मुझे लगता है कि वो जो हमारी ERs में और OPDs में हार्श एटीट्यूड्स होते हैं डॉक्टर्स के, जो आई नो उसके पीछे कई रीजंस भी होती हैं जो शायद जस्टिफाइड भी हैं, पर मुझे हमेशा से उससे थोड़ी सी चिढ़ है. तो मुझे वो चीज बहुत फैसिनेट करती थी कि ये जो हम वाइवा में ये जिस तरह एक ड्रामेटिक सिचुएशन कर रहे हैं, तो क्या हम रियल लाइफ में जब इसे अप्लाई करते होंगे साइकियाट्री वाले, तो वो कैसा होता होगा. सो दैट वाज अनदर मेजर रीजन. उसके बाद देन हाउस जॉब में देयर वाज अ पॉइंट व्हेन आई जॉइंड सर्जरी रोटेशन. दैट वाज माय फर्स्ट रोटेशन, और फर्स्ट रोटेशन हमेशा बहुत मेमोरेबल एक्सपीरियंस होता है. आई did a lot of surgeries and I really liked the working vibe over there. So वहाँ पे मैं थोड़ा सा tilt हुई थी. Like I reconsidered कि मैं psychiatry में जाऊँ या मैं surgery में चली जाऊँ, क्योंकि basically एक stigma associated है इस field के साथ. Friends का भी pressure था, family का भी pressure था कि you are going to waste your degree, so psychiatry कोई ऐसा field नहीं जो तुम choose करो. तो फिर उस पॉइंट पे मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे हुई, लेकिन देन मेरी हाउस जॉब की जब 3 months की रोटेशन हुई साइकियाट्री में, तो विद एवरी पासिंग डे आई लिटरली फेल इन लव विद साइकियाट्री. आई डोंट नो, अभी तो मेरा 1 साल हुआ है, 1 साल और कुछ मंथ्स. आई डोंट नो अभी मैं उसके साथ जस्टिस कर पा रही हूँ या नहीं, बट आई रियली लव साइकियाट्री. हाउस जॉब में मुझे जो एक चीज साइकियाट्री की पसंद आई थी, दैट वाज कि फॉर एग्जांपल मेडिसिन और सर्जरी में वी हैव पेशेंट्स ऑफ लाइक for example cholecystitis, pancreatitis और APD. आप पेशेंट को एग्जामिन करते हैं, उसके सिम्टम्स देखते हैं और आप अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट लाइक प्रिस्क्राइब कर देते हैं और पेशेंट ठीक हो जाता है. लाइक दिस इज द ओनली कम्युनिकेशन यू आर हैविंग विद द पेशेंट. ये सिर्फ आपका इतना रिलेशनशिप है, लाइक रिलेशनशिप. लेकिन जो फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ केस ऑफ OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, और 3 पेशेंट्स हैं और तीनों को, तो हर पेशेंट की लाइफ स्टोरी, हर पेशेंट के लाइक उसके सोशल सर्कमस्टांसेस, वो चीजें इतनी डिफरेंट थी. आपको उसको लाइक बहुत कॉम्प्लिकेट और बहुत डेलिकेट आई मस्ट से उसका ट्रीटमेंट था, और आपको मतलब आप पेशेंट के साथ इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं. एंड आई लव दिस थिंग अबाउट साइकियाट्री. एंड एट दैट पॉइंट आई थॉट कि जितनी वर्सेटाइल ये फील्ड है, उतनी वर्सेटाइलिटी ना मेडिसिन में है ना सर्जरी में है. So then I thought कि yes, this is the field for me because I like to communicate and I really love to dig into people's lives, and patient doctor relationship मुझे लगा जितना अच्छा इस फील्ड में बन सकता है उतना कहीं भी नहीं बन सकेगा. So that's why I came into society. लेकिन I must say कि जो उसमें सबसे major role है वो आपका ही है, and I feel really blessed कि आप यहाँ नहीं हैं, फिर भी I got the opportunity to work with you. Now let's see if I just feel or not. I think I have like spoke a little too much. थैंक यू मानू, थैंक यू वेरी मच. रुला दिया तुमने मुझे. अच्छा. एनीवेज, यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और मैं इन क्वेश्चंस के सारों के जवाब दूंगा. एक छोटा सा फिर गजल सुनाऊं. किसी का इश्क किसी का ख्याल थे हम भी, ये परवीन शाकिर की गजल है. किसी का इश्क किसी का ख्याल थे हम भी, गए दिनों में बहुत बाकमाल थे हम भी.
हम अक्स बिखरते रहे इसी धुन में कि जिंदगी में कभी लाजवाल थे हम भी। लेकिन ऑब्वियसली नोबडी इज लाजवाल, सो वी हैव टू एंड अप थिंग्स। इसमें एक सवाल यह आया कि जी स्पेशलाइजेशन के लिए कौन सा मुल्क अच्छा है। तो स्पेशलाइजेशन के लिए कोई भी मुल्क चले जाएं अच्छा है जहां आप कर सकें। मेरे पाकिस्तान को छोड़ के आने की वजूहात बहुत डिफरेंट थी। मेरा प्रोफेशन नहीं था, वो मेरा पैशन है। मैं प्रोफेशन के कैरियर के जिस स्टेज पे छोड़ के आया, पीक ऑफ द टाइम, और अभी मेरे 7-8 साल 8 साल 9 साल नौकरी के रहते थे, और मुझे पूरा यकीन है कि अगर मैं रहता तो शायद मैं मजीद भी आगे चला जाता, प्रोफेसर और प्रेसिडेंट पाकिस्तान साइकियाट्रिक सोसाइटी के अलावा भी। सो स्पेशलाइजेशन आप पाकिस्तान से करें, यूके से करें, यूएस से करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात फिर वही है, पैशन कहाँ है। पाकिस्तानी एफसीपीएस कमाल की डिग्री है जिसमें बहुत ज्यादा रगड़ा और बहुत ज्यादा मेहनत करवाई जाती है, और एफसीपीएस साइकियाट्री किसी भी क्वालिफिकेशन से कम नहीं है। मैं यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में प्रैक्टिस कर रहा हूँ बगैर किसी अमेरिकन या यूके की डिग्री के। मेरे पास पाकिस्तानी एफसीपीएस साइकियाट्री की डिग्री है और मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। सो इट्स अनयूजुअल, प्रॉब्ली लोगों ने कभी नहीं सुना होता कि एफसीपीएस और कनाडा में प्रैक्टिस और मेडिसिन के अंदर। So people do feel strange about it. Yes, it is a strange phenomenon. लेकिन ऐसा हुआ है, मैं आपके सामने बैठा हूँ और मेरे पास एफसीपीएस की डिग्री है। मेरी अभी भी यहाँ पे भी नुस्खे के ऊपर वही लिखा होता है, डॉक्टर नासिर खान एमबीबीएस एफसीपीएस साइकियाट्री, ठीक है, जो कि यहाँ पे कोई लोगों को समझ नहीं आती कि ये क्या डिग्री है, लेकिन मैं वही यूज करता हूँ। सो एक तो ये बात कि कहीं से भी करो स्पेशलिटी, जो भी चूज करो बस पैशन से करो। फिर सवाल ये था कि kindly drop your okay. It is commonly believed that a psychiatrist is at a higher risk of being exposed to potential physical threats or acts of violence as patient encounters can be have questionable state of mind at times. Is it true? No. As a psychiatrist, मुझे 33 साल हो गए हैं psychiatry में, 33 years, शायद more than that, I believe, अगर मैं अपने पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग वाला पीरियड भी डाल लूं तो। इस पूरे टाइम पीरियड के दौरान सिर्फ एक दफा एक मरीज से मुझे फिजिकल अब्यूज हुआ, और वो भी पीछे से। 33 साल में एक दफा एक मरीज ने पीछे से मुझ पे हमला किया, अदरवाइज कभी किसी मरीज के साथ कोई अब्यूसिव और एग्रेसिव मसला नहीं हुआ। और वो वाकया इस तरह हुआ कि मैं, और ये वाकया भी उस वक्त हुआ जब मैं साइकियाट्रिस्ट नहीं बना था, तो मैं ट्रेनिंग कर रहा था उस जमाने में, वही पिंडी के जमाने में। तो दोपहर का 2 बजे का वक्त था, शदीद गर्मी के दिन थे, और पिंडी का जो इंस्टीट्यूट ऑफ साइकियाट्री है वो मुबशर साहब ने एक बहुत बड़ा सा एक पार्किंग लॉट बना हुआ था, उसके पीछे वो डिपार्टमेंट था। वहां से हम निकल के उस पार्किंग लॉट को क्रॉस करके हम बाहर की तरफ जाते थे। सो मैं वार्ड से निकला और मैं निकल के उस पार्किंग लॉट में से गुजर रहा था, मेरे साथ मेरे एक कुलीग साथी चल रहे थे। पीछे से एक पेशेंट आई और उसने एक वो जो शीशे का फ्लास्क होता है ठंडे पानी वाला, वो मुझे जोर से ऐसे मारा। मौजज़ा था, अल्लाह की मेहरबानी से मुझे स्क्रैच तक नहीं आया। वो कहीं यहां किसी हड्डी पे लगा, मुझे नहीं पता कहां लगा, मुझे दर्द भी नहीं हुई, और वो फ्लास्क चुड़-मुड़ हो गया, उसके अंदर का शीशा टूट गया। और वो पेशेंट जो थी उसको मैंने फिर मुड़ के देखा, फिर मैंने उसको कहा, मैंने कहा चलो अंदर जाओ, और फिर वो वापस चली गई। सो 33 इयर्स में कभी ऐसा नहीं हुआ। बात फिर वही है, हाउ यू हैंडल द सिचुएशन, दैट मैटर्स द मोस्ट। इफ यू हैव द स्किल्स, इफ यू हैव द करेज, इफ यू आर बोल्ड, then everything is okay. If you are coward, if you don't want to take the step, if you don't want to stand, if you don't want to correct your patients, then everything is bad. ये आपके सवाल का जवाब। If you could go back to your undergraduate level, what would you do differently? If I'll go back, or if I'll be in power to correct the undergraduate curriculum in Pakistan,
जो मुबशर साहब के साथ, राना साहब के साथ, मोहम्मद राना साहब के साथ और बाकियों के साथ मेरी डिस्कशन होती रही, 5 मेजर करिकुलम दुनिया के मैंने उठाए और उस जमाने में जो बीसी साहब, मुबशर साहब ने जिन साहब को हमारे साथ लगाया था करिकुलम बनाने के लिए, नया करिकुलम अंडर ग्रेजुएट का बनाने के लिए, उनके साथ मेरे आर्गुमेंट्स और डिस्कशन हो रही थी और मैं बताने की कोशिश कर रहा था पाकिस्तान में 1100 घंटे एनाटॉमी पढ़ाई जाती है, जबकि सारी दुनिया में 300 से 400 घंटे पढ़ाई जाती है। पाकिस्तान में 1200 से ज्यादा घंटे फिजियोलॉजी पढ़ाई जाती है, जबकि सारी दुनिया में इसका टाइम 500 से 600 घंटे है। पाकिस्तान में बेशुमार सब्जेक्ट्स हैं, मुझे सारे याद नहीं है, पुरानी बात होगी करिकुलम की, ये भी प्रिसाइज फिगर शायद मैं मिस कर रहा हूं, लेकिन कहने की बात ये है कि दुनिया के मुकाबले में पाकिस्तान में नंबर ऑफ आवर्स फॉर द फ्यू सब्जेक्ट्स इज टू ह्यूज and the number of subjects which needs focused is too less. So मैं अगर मुझे पावर मिले तो मैं अंडर ग्रेजुएट लेवल पे उस करिकुलम को रिवाइज करूं और उसको एट पार लेकर आऊं टुवर्ड्स द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जहां पे अब मेडिकल करिकुलम चेंज हो गया। अब कैडेवर्स की डाइसेक्शन जो है वो उस तरह नहीं होती जैसे हमें डाइसेक्शन वार्ड में घुसा दिया जाता था कि बदबू में खड़े हो जाओ, कुछ समझ नहीं आता कि उसकी वो क्या हम कर रहे हैं, बस काटो, फाड़ो, चीरो, समझो। समझ तो आती कुछ नहीं, और हो सकता है समझ आप लोगों को आती हो, मुझे कभी नहीं समझ आई। वो सूखी हुई डेड बॉडी के ऊपर से डाइसेक्शन करने से आज तक पल्ले नहीं पड़ा कि कौन सी नर्व्स कहां से निकाली और कहां फेंक दी। So I want to change that. So I want to change the whole of the curriculum and make sure that the Pakistan's curriculum comes at par with the rest of the world, which is not. हम बहुत अच्छे रट्टू तोते हैं, इसलिए हमें मेडिसिन बहुत आती है, इसलिए हम बाकी सारों से बहुत काबिल हैं, क्योंकि हम रट्टू तोते हैं। इसलिए नो, दिस शुड नॉट बी द क्राइटेरिया। हमें रट्टू तोता नहीं होना, हमें अच्छा डॉक्टर बनना है, स्किलफुल डॉक्टर बनना है जिसकी लोग तारीफ करें। और पाकिस्तानी डॉक्टर्स में बहुत टैलेंट है, बहुत बहुत ज्यादा टैलेंट है। किसी दुनिया के हिस्से में उठा के देख लो, पाकिस्तानी सक्सेसफुल डॉक्टर्स होंगे, बहुत सारी जगहों पे नहीं होता ऐसा। एनीवेज, sir, you probably could have pursued surgery after the house job. Why you didn't? I never did it because मैंने ये सोचा, मेरी सोच गलत भी हो सकती है, मैंने ये सोचा, जैसे मैंने पहले बात शुरू की थी कि इस समुंदर में गर्क होना है कि इसमें तर जाना है, और इस समुंदर में अगर मैं सर्जन बनता तो मैं गर्क हो जाता, क्योंकि हर साल FCPS जो बच्चे सर्जनरी करते हैं 30-40, उसमें से कितने लोग बड़े नामों में शुमार होता है जिनका, कितने। सो मैं उस समुंदर में गर्क नहीं होना चाहता था, पहली चीज। दूसरी चीज, मुझे ये एहसास हुआ कि चाहे मैं जितना मर्जी अच्छा सर्जन बन जाऊं, मेरी क्लिनिकल स्किल्स मैटर करती हैं मेरी कम्युनिकेशन पे, मेरी बातचीत पे, मेरे इजहार पे, जो मैं आप लोगों से एक्सप्रेस कर रहा हूं जिस तरह से। और सर्जरी में तो मेरी ये मत मारी जाएगी, ये तो सर्जन का तो काम ही नहीं है। सर्जन का तो काम ये है कि वो आता है, वो हाथ रखता है, अपेंडिक्स है, ले जाओ थिएटर में, और काट कूट के निकाल के मरीज को फारिग कर देता है। कम्युनिकेशन कहां गई? सो मेरी पर्सनालिटी की स्किल्स तो दब जाती, मर जाती, और मैं अच्छा सर्जन ना बन पाता। मैं चाहे मेरी सर्जरी बहुत अच्छी होती, लेकिन मैं इतने पैसे ना कमा पाता, मैं प्रोफेशनली इतना ऊपर ना जा पाता। सो मैंने इसलिए भी बड़ा कैलकुलेटिवली सोच के ये फैसला किया कि नहीं, मैं सर्जन नहीं बन सकता, नहीं बनना चाहिए, और मेरा ख्याल है कि मेरा वो फैसला ठीक था। Sir, you seem very enthusiastic and it's lovely to see someone being passionate about their field after all this time. Would you shed light of the following of your hobbies alongside your professional job, and it has helped you in the profession? Being medical students, we are often discouraged if we talk and study literature and poetry. कमाल है यार। नहीं भाई,
पोइट्री तो आपकी जिंदगी है। हमारे साइकियाट्री में हम 3 चीजों को बहुत वैल्यू देते हैं, स्पिरिचुअलिज्म को, रिलीजन को, स्पिरिचुअलिज्म को, और सोशली आपकी इन्वॉल्वमेंट को। और ये तीनों चीजें बहुत सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट हैं। क्यों? स्पिरिचुअल अगर आप नहीं होंगे तो बहुत सारी जगहों पे आप वो बात नहीं कर पाएंगे जो आपको करनी चाहिए। एक मरीज से एक साइकियाट्रिस्ट का रिश्ता पीरी और मुरीदी के सिलसिले वाला रिश्ता है, और अनफॉर्चुनेटली आपको वो रिश्ता बनाना पड़ता है। बल्कि मैं ये कहूं कि एक मरीज से एक डॉक्टर का रिश्ता, साइकियाट्रिस्ट का नहीं, एक डॉक्टर का रिश्ता पीरी और मुरीदी वाला है। डॉक्टर को मरीज मसीहा समझते हैं, और जब डॉक्टर सड़कों पे आते हैं और हड़तालें करते हैं तो मुझे दुख ये पहुंचता है कि ये मसीहा खराब हो रहा है और वो इमेज खराब हो रहा है। और मेरा हमेशा से दिल ये होता है कि नहीं, ये इमेज खराब नहीं होना चाहिए। स्पिरिचुअलिज्म और साइकियाट्री का बड़ा गहरा ताल्लुक है, और डॉक्टरी का बड़ा गहरा ताल्लुक है। अच्छे डॉक्टर आपको, बड़े बड़े नाम मैं लूं जिनको मैं जानता हूं, आफ्ताब मोहसिन साहब का नाम आपने सुना होगा, सबने सुना होगा। आफ्ताब मोहसिन साहब से कभी गालिब के शेर सुने, मजा आएगा आपको सुन के। सुनाते नहीं पब्लिकली, लेकिन सुन के देखें। वंडरफुल पोएट, अच्छे शेर याद हैं। और बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े फिजिशियंस हैं, प्रोफेसर्स हैं, they are fond of poetry, they are fond of literature, they are fond of extracurricular activities, which definitely you need because you are a human being and you need all of these things for yourself. वो अगेन बात फिर वो ये बहुत सारी बातें करके भी आप सारी बात नहीं कर पाते। वो एक शेर है कि जिसे खुद से नहीं फुर्सतें, ना जिसे ख्याल अपने जमाल का। जरा गौरतलब बात है कि जिसे खुद से नहीं फुर्सतें, ना जिसे ख्याल अपने जमाल का, मुझे अपने हसनो हुस्नो का ख्याल ना हो, इसे क्या खबर मेरे शौक की, इसे क्या पता मेरे हाल का। ये मेरे हाल का पता वही जान सकता है जो अपने आप को पहचान सके, अपने केयर कर सके। तो लिटरेचर तो जिंदगी है। और हमारे एक साथी हैं जिनसे मैं बहुत सारी बातों पे एग्री करता हूं और बहुत सारी बातों पे एग्री नहीं भी करता। वो कहते हैं कि डॉक्टर इंटेलेक्चुअल्स नहीं होते, डॉक्टर तो रटूत होते हैं। ठीक है। और मैंने उनसे कहा जी इंटेलेक्चुअल्स क्यों नहीं कहते? कि इंटेलेक्चुअल्स जो हैं वो होते हैं आर्किटेक्ट होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, जिनमें क्रिएटिविटी हो, वो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं। पोइट्स इंटेलेक्चुअल होते हैं जिनमें क्रिएटिविटी है। डॉक्टर्स इंटेलेक्चुअल नहीं है। लेकिन नहीं, हम बहुत सारे डॉक्टर्स इंटेलेक्चुअल हैं क्योंकि हमारे अंदर भी पोएट है, हमारे अंदर भी हुस्न की जांच पड़ताल करने वाला इंसान मौजूद है, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। सर, अगर किसी को प्लैब भी देना हो तो पहले प्लैब दें या पहले साइकियाट्री में स्पेशलाइज करें फिर प्लैब? बेटा, इस सवाल का जवाब सिंपल सा मैं ये इतना दूंगा कि अगर तो यूके में जिंदगी गुजारनी है तो फिर प्लैब दो और साइकियाट्री भी वहीं पे करो। और अगर पाकिस्तान में जिंदगी गुजारनी है तो 2 कश्तियों के सवार डूब जाते हैं। जो ये चाहते हैं कि हम यूके में से पढ़ाई करें और पाकिस्तान में सेटल हो जाएं तो वो नहीं कामयाब होते और वो तंग आके वापस भाग जाते हैं। बहुत कम लोग जबरदस्ती वापस आते हैं, किसी जरूरत के तहत आते हैं। माँ बाप बूढ़े हैं, बहन भाई कोई नहीं है, ख्याल रखने वाला कोई नहीं है, या कोई और मसले, तो वापस आ जाते हैं, लेकिन दिल से नहीं आते। और जो दिल से नहीं आते वो कोई काम ठीक नहीं करते। जैसे मैंने पहले कहा, पैशन और मोटिवेशन जरूरी है। सर, इज इट बेटर इफ वी स्टडी साइकोलॉजी टू इन एडिशन टू साइकियाट्री? डज दिस, वेल, साइकोलॉजी इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ साइकियाट्री। ये बात अंडरस्टैंड करो कि साइकियाट्री इज नॉट ओनली साइकियाट्री। मैंने पहले बात की, जब हम साइकियाट्री में स्पेशलाइजेशन के लिए करते हैं FCPS, तो हमें साइकोलॉजी का बहुत मोटी मोटी किताबें जो हमने पहले कभी नहीं पढ़ी होती
मास्टर्स लेवल की दोबारा पढ़नी पड़ती है, और फिर उस साइकोलॉजी को हमें मेडिसिन से रिलेट करना पड़ता है, और उसको रिलेट करके उसको मिक्सचर बनाना पड़ता है, क्योंकि फ्रॉइड की सारी थ्योरीज नल एंड वॉइड हो गई जो 1912-1935 में उसने बयान की थी। तो साइकोलॉजी भी चेंज हुई साइकाइट्री के साथ साथ, तो हमें अपडेट उसमें भी होना पड़ता है। तो सारे साइकाइट्रिस्ट के लिए साइकोलॉजी पढ़ना जरूरी है, लेकिन वो साइकोलॉजी नहीं जैसे मैंने फ्रॉइड की बात की, वो साइकोलॉजी जो आज प्रैक्टिस होती है, नई साइकोलॉजी। Sir, being the only medical person in the family, once students are unaware of the basic medical field, through the initial years of MBBS, the only way to learn through the books of the syllabus to know they have to pass their exam to move step forward. Yes. Question लंबा है, थोड़ा सा short करूंगा. Do you recommend any books, courses, volunteer works, or any other activities? Most importantly, what would you be ideology teachers that would help us to develop passion for this field? बेटा बात फिर वही है, पैशन डेवलप होता भी है और कुछ करना पड़ता भी है। आपको जब भी कोई स्पेशलिटी चूज करनी है तो आपको अपनी पर्सनालिटी, अपने सोशल सर्कमस्टेंसेस, माँ बाप, घरेलू हालात, फाइनेंशियल हालात और बहुत सारी चीजों को मद्देनजर रख के स्पेशलिटी चूज करनी चाहिए। सो अगर हालात के हिसाब से आपको सपोर्ट है और आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है और आपकी स्किल्स अच्छी हैं और हर चीज आपके मुताबिक है जो आइडियल होना चाहिए, तो फिर आप स्पेशलिटी चूज कर लें, जैसे चूज कर सकते हैं। लेकिन स्पेशलिटी ऐसे चूज ना करें जैसे मैंने पहले बात की कि यूएसएमएलई दिया, मैच कहीं नहीं आ रहा था, साइकाइट्री में मैच मिल गया तो साइकाइट्री कर ली, ऐसे ना चूज करो। इस तरह चूज करोगे तो शायद पैशन नहीं आएगा, शायद अच्छे साइकाइट्रिस्ट, पैसा कमाने वाले साइकाइट्रिस्ट बन जाओ लेकिन अच्छे साइकाइट्रिस्ट ना बन सको। सो उसको जरा देख लें। किताबें, I don't want to recommend you any books. It all depends on you, what you want to read. Internet is full of things. And वो हमारे मरीज अक्सर आके हमें सवाल करते हैं, जी गूगल पे हमने पढ़ा था कि हमें ADHD है। मैं कहता अगर गूगल ही इतना बड़ा डॉक्टर होता तो फिर मेरी क्या जरूरत थी। सो वो इस किस्म की बातें, सारा कुछ अवेलेबल है, whatever you feel comfortable. How can an undergrad student improve his or her CV to pursue career in psychiatry? बेटा CV की जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है चंद बेसिक चीजों की। आपने अंडरग्रेड करना है, उसके बाद आप क्लियर हो कि आपको हाउस जॉब करना है, और फाइनल ईयर से हाउस जॉब के दरमियान तक इन 2 सालों में आपको क्लियर हो कि आपने कौन सी स्पेशलिटी करनी है और कहाँ करनी है। आपने प्लैब देना है, यूएसएमएलई देना है, ऑस्ट्रेलियन बोर्ड देना है या पाकिस्तानी इम्तिहान देना है, और जब आप क्लियर होंगे तो आपका CV वही है। उसके बाद यस, सबसे जरूरी चीज अगर CV में ऐड करनी है तो वो रिसर्च है। जितने ज्यादा रिसर्च पेपर होंगे उतना आपकी रिकग्निशन होगी, एक्नॉलेजमेंट होगी। रिसर्च पेपर नहीं होंगे, एक्नॉलेजमेंट भी नहीं होगी। शायद मुझे यहाँ नौकरी मिलने की एक वजह मेरे रिसर्च पेपर ही थे, उसी के बेसिस पे शायद मुझे यहाँ पे नौकरी मिल गई। Has a patient ever told you that he should fall in love with you? Sorry to interrupt you. आपने एक क्वेश्चन ऊपर वाला मिस कर दिया, which I find very interesting and I'd certainly like you to comment on it. कि हाँ बोलो, Fathers, please इस go वाले, ahead. ये CV वाले से ऊपर वाला, many people think and accuse psychiatry to be non-specific or something that even psychiatrists don't know about. Even many medical doctors think the same. Can you comment on it? How science is involved in all of this? Okay, अच्छा, you like the questions to be answered. Okay, so साइकाइट्री के लिए मैं हमेशा ये अगेन अपने टीचिंग्स में भी बात करता हूँ, जैसे ये हमारा जिस्म है, ये किस चीज से बना है, ये सेल्स से बना है, और ब्रेन भी हमारा सेल्स है। ब्रेन में सेल्स, स्पेशल सेल्स हैं जिनको हम न्यूरॉन्स बोलते हैं। 1 बिलियन न्यूरॉन्स हैं और 100 बिलियन सेल्स इन्वॉल्व हैं ब्रेन के अंदर। सिंगल लाइट स्टिमुलस stimulates 3 million neurons at a time, और वो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के तहत
इम्पल्सेस फैलती हैं। हमारी सोच इन्हीं इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट्स का एक मिलाप है। सोच कहाँ है? इधर है। इधर से ही कंट्रोल हो रहा है मेरा दिल, इधर से ही कंट्रोल हो रहे हैं मेरे जज्बात, इधर से ही कंट्रोल हो रही है मेरी सोच, इधर से ही कंट्रोल हो रही है मेरी कॉग्निशन, इधर से कंट्रोल हो रही है मेरी सांस। ये बंद तो सांस बंद, ये बंद तो दिल बंद, ये बंद तो सोच बंद, ये बंद तो सब कुछ बंद। तो इसके अंदर क्या है? इसके अंदर सेल्स हैं, और उन सेल्स में क्या है? वो ही केमिकल्स हैं, सोडियम पोटेशियम चैनल जो फिजियोलॉजी में पढ़ते हो, आयन गेटेड चैनल्स और नर्व इंपल्स और डीपोलराइजेशन। लेकिन वो कॉम्प्लेक्स फिनोमेना of generating a nerve impulse and creating a thought and making that thought actually come into practice is what your brain does. And we psychiatrists play with it. That is what the psychiatry is. This is what the psychiatry is. Has patient ever told you that, oh, patient has told me number of times that they are in love with me, but patients are patients. We have to respect the patients as it is there to be honored. शुरू में मेरी बीवी जेलस भी होती थी, और एक दो दफा उसने मुझे कहा भी, ये मरीज मुझे बहुत बुरी लगती है। अगेन, मरीज है, वो आपको अगर एक्सप्रेस कर भी रहा है तो साइकाइट्री में आपको ट्रेन किया जाता है कि कैसे आपने उस पॉजिटिव ट्रांसफरेंस को और नेगेटिव ट्रांसफरेंस को एड्रेस करना है। और अगर आप अच्छे साइकाइट्रिस्ट हैं तो ये चीजें आप बड़े आराम से हैंडल कर लेते हैं। सारी दुनिया मोहब्बत करती फिरे आपसे, मैटर नहीं करता, लेकिन आपके अपने जो आपसे मोहब्बत करते हैं, सबसे ज्यादा जरूरी वो मैटर करता है। सो मेरे शागिर्द जब मुझे कोई कॉम्प्लीमेंट देते हैं, जैसे मानूर ने दिया, मेरे लिए वो इमोशनल लम्हा है। ठीक है, मरीज मुझे कहती है मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, मेरे लिए वो इमोशनल लम्हा नहीं है, वो मेरे लिए क्लिनिकल साइकाइट्री है, मैंने उसको प्रैक्टिस करना है। हाँ, challenging situations with the patients where I am unable to assess or diagnose or manage, those things definitely give me more energy to do something. जहां मरीज ढीठ होके सुनने को तैयार नहीं होते, वहां मैं आमतौर पे तंग पड़ जाता हूँ। Has a patient ever, okay, then sir, you missed the cues of Dr. Benazir, kindly answer that too. Oh, Benazir ने क्या cues दिए? How to deal with questions of people, why psychiatry, क्यों रखे और कुछ नहीं मिला? Well, Benazir also one of the trainees in psychiatry, wonderful person, बहुत अच्छी और डायनामिक, और इंशाल्लाह एक बहुत अच्छी साइकाइट्रिस्ट भी बनेगी। इसी अराउंड और चलेगी नहीं, शी इज हियर। यस सर। ओके, सो बेनजीर ने सवाल वही पूछा कि जब कुछ ना लग गया तो फिर साइकाइट्री कर ली। दैट इज ट्रू कि हम साइकाइट्री को चूज इसलिए करते हैं कि धक्के से, कि जब कुछ ना मिला तो साइकाइट्री कर ले। कि आपको और कुछ नहीं मिला था, आपने क्यों रखी है साइकाइट्री? एवरीबॉडी आस्क्स मी एंड समटाइम्स आई एम लाइक, लेकिन ये जो लोग पूछते हैं इस पे मुझे कोई इतराज नहीं। मुझसे भी लोग पूछते थे, इनको हो नहीं लग तू साइकाइट्री पढ़ ली, इस पे मुझे कोई इतराज नहीं। लेकिन जब अगेन मैं अगर अपने आप को क्वेश्चन पूछ लूं कि क्या मैंने धक्के से साइकाइट्री की है, तो नहीं। दैट मेरे पास ऑप्शंस मौजूद हों और मैं साइकाइट्री चूज करूं, ये मोटिवेशन है, ये पैशन है, ये कैलकुलेटिव डिसीजन है। सो कोई भी स्पेशलिटी चूज करो, एक कैलकुलेटिव कॉग्निटिव डिसीजन करो। सिर्फ इस बात पे ना करना कि डॉक्टर नासिर ने पराडा के कफलिंग्स पहने में, इसके पास तो ये गाड़ी बड़ी आला है, जो कि ऑब्वियसली आई नो कि अंडरग्रेड लेवल पे ये चीजें बहुत इंप्रेस करती हैं। प्रोफेसर्स किस गाड़ी में आ रहे हैं, उन्होंने कपड़े कैसे पहने हुए हैं, वो सूट कौन सा पहनते हैं, वो शूज उनके कितने चमक रहे होते हैं, एब्सोल्युटली फाइन। दीज आर द थिंग्स व्हिच फैसिनेट एवरीवन। फिल्में देखते हैं आप, एक्टर्स की आपको यही बातें तो अच्छी लगती हैं, सो फिर आपके प्रोफेसर भी एक एक्टर्स बन जाते हैं। बट यू कैन नॉट चूज द डायमेंशन कि सलमान खान एक था टाइगर में, अगर 100 बंदों को मुक्का मार के मार गया, तो आप हकीकत में ये नहीं करते, क्योंकि आपको पता है ये चीज ठीक नहीं है, ये गलत है। ठीक है, सो फिर हम स्पेशलिटी क्यों हकीकत में इस बात पे चूज कर लेते हैं
कि हमें प्रोफेसर की गाड़ी बड़ी पसंद है। सो ये मत करना, ये बिल्कुल मत करना। जो स्पेशलिटी चूज करो, सोच के चूज करो, देख के चूज करो। हाउ मच यू सेटिस्फाइड एज साइकाइट्रिस्ट इन कनाडा कंपेयर टू पाकिस्तान? अब इसके जवाब मैं 2 लेवल पे दूं। एक जवाब मैं दूं इसका पर्सनल लेवल पे, और एक जवाब दूं मैं सरकारी लेवल पे। ओके, सरकारी लेवल का जवाब पहले दे देता हूं, जनरल लेवल का बाद में दे देता हूं। वो एक शेर है, मैं अपने खदो खाल ही पहचान ना पाया, मैं अपने खदो खाल ही पहचान ना पाया, गुजरा है यहां वक्त बड़ी धूल उड़ा के, करता हूं तरोताजा हरी रुत के मनाजिर, कागज पे कभी पेड़ पे कभी फूल बना के। ऑब्वियसली जिंदगी के 50 साल, आधी सेंचुरी पाकिस्तान में गुजरी। नाम पाकिस्तान ने दिया, डिग्री पाकिस्तान ने दी, पैसा पाकिस्तान ने दिया, नाम शोहरत पाकिस्तान ने दी, सब कुछ पाकिस्तान ने दिया। मैं भी पाकिस्तान का ही हूं। साइकाइट्रिस्ट इन कनाडा, मैं साइकाइट्रिस्ट हूं, चाहे कनाडा हो चाहे पाकिस्तान हो। मेरा काम वही है जो पाकिस्तान में था, वही यहाँ पे भी है। मुझे लोगों की मजबूरियों को, लोगों की प्रॉब्लम्स को, लोगों के मसाइल को, उनको ठीक करना है और हल करना है। नॉट एज अ पाकिस्तानी बट एज अ साइकाइट्रिस्ट। सो मेरे नजदीक चाहे वो कैनेडियन हो, चाहे वो अमेरिकन हो, चाहे वो पाकिस्तानी हो, अगर वो मेरे पास हेल्प के लिए आया है तो मेरे लिए वो सिर्फ मरीज है, मेरा मरीज है जिसको मुझे ठीक करना है। दैट इज अ चैलेंज। सो ये पाकिस्तानी होने के लिए मैं साइकाइट्रिस्ट का बता दूं जुमला। लेकिन अगर आप ये पूछें कि मुझे कहां से मोहब्बत है, मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत। मैं यहाँ आया अगेन, मैंने जैसे शुरू में फैज की नज़म पढ़ी थी, मेरे दिल मेरे मुसाफिर हुआ फिर से हुक्म सादर, कि वतन बदर हूं हम तुम, दे गली गली सदाएं, करें रुख नगर नगर का, कि सुराग कोई पाए किसी यार नामा बर का, सरे कुए नाशनाइयां हमें दिन से रात करना, कभी इससे बात करना कभी उससे बात करना, हमें ये भी था गनीमत जो कोई शुमार होता, हमें क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। सो पाकिस्तान छोड़ने की रीजंस बहुत पर्सनल हैं, और अनफॉर्चुनेटली बात फिर वही है, मैं बार बार आता हूँ पाकिस्तान, साल में कई बार आता हूँ और हमेशा आता हूँ। मैंने पाकिस्तान में अपना क्लिनिक भी इंटैक्ट रखा हुआ। पहले वहां मैं अकेला था, फिर मेरे साथ डॉक्टर साकिब बाजवा शामिल हो गए, फिर डॉक्टर आफिया अजहर शामिल हो गई, उन्होंने भी FCPS साइकाइट्री कर लिया। फिर डॉक्टर तहमीना मुश्ताक, शी इज FCPS साइकाइट्रिस्ट, फिर वो मेरे साथ शामिल हो गई। सो पहले मैं अकेला अपने क्लिनिक पे बैठता था, मेरे क्लिनिक पे 4 FCPS लोग बैठते, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, क्योंकि मैं अभी भी ऑनलाइन प्रैक्टिस करता हूँ पाकिस्तान में। सो पेशेंट्स देखता हूँ। आज से 6 साल पहले जब मैंने ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया पेशेंट देखने का, तो बहुत सारे मेरे साथियों ने कहा कि कैमरे में बैठ के, टीवी में बैठ के भी कोई पेशेंट मरीज देखे जा सकते हैं, साइकाइट्री खेली जा सकती है। अब कोविड की वजह से सारे वही काम कर रहे हैं। सो यू शुड बी द इनोवेटिव पर्सन टू डू द थिंग्स फर्स्ट, एंड आई लव इट. I still love Pakistan. I'm more passionate about Pakistan than anything else in my life. And my wife knows it very well, so she's listening outside, so she will definitely criticize me a lot after that. But फिर भी मैं बोलूंगा जरूर. Sir, if someone, how much you satisfied as a psychiatrist? Could you shed light on the research opportunities in psychiatry? Hordes and hordes of research opportunities. ये अभी बच्ची बैठी हुई है ना, मान लो इसको मैंने कहा ये सवालनामा है, इस सवालनामे को ये करो और इस तरह करो, इस तरह करो, डाटा इकट्ठा कर लो। बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। दिल हो रिसर्च वाला, रिसर्च पेपर बड़े, अगेन मेरे पास टाइम हो और एनर्जी हो तो मेरे लिए बड़ा अच्छा काम है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि आपको मरीज भी देखने हैं और अब मुझे 2 जगह देखने हैं, पाकिस्तान में भी देखने हैं और यहाँ पे भी देखने हैं, तो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट हो जाता है। सो टाइम निकालना और काम करने के लिए जरा मुश्किल हो जाता है। Someone is passionate about a specific specialty, but due to high merit or competition, that person cannot get residency in that field. Then what to do? Then why you are going for the residency in that specialty? Why can't you do the job somewhere else?
So if you are passionate about medicine in US, of course you won't get into the system, and you should know this rationally. US में medicine में जाना, obviously you have to be top of the top if you really want to do that. Cardiology, surgery, medicine, पाकिस्तानी ये नहीं कि नहीं है, हर स्पेशलिटी में वहां पे भी हैं, और जरूर जाएं. अगर मौका मिलता है तो जरूर जाएं, और अगर नहीं मौका मिलता तो इतना ही पैशन है तो फिर यूएस ना जाओ, कहीं और चले जाओ. और अगर इतना ही पैशन है तो स्पेशलिटी करनी ही करनी है तो किसी और मुल्क से कर लो, जरूरी है कि वहां से करना है. My father wants me to study abroad, so I had thought of going to UK then coming back, but now you said that it's not a good option. Some practical tips to convince parents. There is no practical tip to convince parents. I'm sorry to say. वालिदैन हमेशा सोचते हैं जिस एंगल से, खासतौर पर हमारे मुआशरे में, वो एंगल बहुत डिफरेंट है फ्रॉम द एंगल विच एक्चुअली. अगर तो आपके वालिदैन डॉक्टर हैं फिर तो उनसे बात की जा सकती है, लेकिन अगर वो डॉक्टर नहीं है तो फिर उनसे बात करना थोड़ा सा मुश्किल होगा. लेकिन ऑब्वियसली इट्स अ बिग चैलेंज हाउ टू कन्वे इट. जो भी करना हिम्मत, हौसले और तहम्मुल से करना, लड़ाई ना करना, सख्त लफ्ज ना बोलना और आर्गुमेंटेटिव नहीं होना. जैसे ही आर्गुमेंटेटिव होगे बदतमीजी के जुमरे में आ जाओगे और अम्मा भी नहीं मानेगी तो अब्बा ते कदी मनने ही ना. कहते ये तो औलाद ही जो है ना नाफरमा प्रकार है. सो इसका ध्यान रखना कि जो भी वालिदैन से बात करो अपने पैशन के लिए, भावें किसी कुड़ी दी गल करनी होवे, make sure that you have to talk very very passionately and very very धीमे लहजे में, तमीज के दायरे में. आर्गुमेंट्स नहीं करने, गुस्सा नहीं खाना, लफ्ज बड़े केयरफुली चूज करने, प्रिपेयर होके जाना है, फिर बात करनी है. तो अम्मा भी मनने थे, अब्बा भी मनने. मैंने अपनी माँ से जब कोई बात बनवानी होती थी तो मेरा बड़ा आसान तरीका होता था, जो मुझे पता चल गया था अपनी माँ का. सो मैं जाता था माँ के पास, बैठ जाता था, चुप करके बैठ जाता, कुछ नहीं बोलता और बैठा रहता था थोड़ी देर. वो 10 मिनट से ज्यादा जब गुजार लेता था तो उनको खुद फिक्र शुरू हो जाती थी, क्या चक्कर है ये मेरे पास आके इतनी देर से क्यों बैठा हुआ, और वो भी चुप करके बैठा हुआ, बोल भी कुछ नहीं रहा. तो फिर वो खुद ही पूछने, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं. नहीं क्या चाहिए? नहीं कुछ नहीं. नहीं कुछ बात है ना, यहाँ आके बैठे हुए. सो I started with that situation. So think about the sore points in your parents' emotional state and use that. Emotional blackmail करोगे तो बात बनेगी, वरना नहीं बनेगी. और फिर भी मजीद टिप्स चाहिए हो तो फिर किसी वक्त अलग में बात कर लेंगे. Okay. Okay. So now people have started thanking me. This means कि काफी टाइम हो गया. कितना टाइम हो गया? Sir, it's almost 1.5 hour. लेकिन अगर आपके पास टाइम है and if you give permission तो हम 1-2 और सवाल कर लें. बिल्कुल कर लो. एक शेर और सुना दूं? जी सर जरूर. एक शेर सुनाऊंगा बस, फिर उसके बाद जो मर्जी कर लेना. मुंहजोर आंधियों की हथेली पे एक चिराग, पैदा मेरे लहू में हरारत भी कर गया. मुंहजोर आंधियों की हथेली पे एक चिराग, पैदा मेरे लहू में हरारत कर गया. थोड़ा सा अपने लहू को गर्म रखें लेकिन दिमाग को ठंडा रखें, सारे काम हो जाएंगे. Go ahead, ask the question. Sir, thank you so much. It was a pleasure listening to you और I'm pretty sure कि हम सब energized feel कर रहे हैं आपकी बातें सुन के. तो मैं इसी से related question करना चाहूंगी कि you still have so much energy माशाल्लाह, and your students also do have that. जैसे हमने अभी डॉक्टर महानूर पर सुना था. तो what is the secret of this energy that you still have it and you transmit it to others as well? बात फिर वही है कि मेरा काम है ना, ये अब तो मेरे प्रोफेशन का हिस्सा बन गया कि मैंने उस सोए हुए को उठाना है, उसको रोए हुए को हंसाना है, और वो हंसते हुए जो मैनिक फेज में आ रहा है उसको बिठाना है. सो शायद उसी से सारा कुछ जनरेट होता चला जाता है. और जैसे मैंने पहले कहा कि एक पैशन, एक एनर्जी, एक विगर आपके अंदर किसी भी जगह पे हो. मुझे जब मैंने FCPS कर लिया, FCPS करने से पहले तक मुझे अंदाजा नहीं था कि मैं शायद उस्ताद बन सकता हूँ.
जब मेरा FCPS हो गया और मैं पहली दफा मुझे क्लास लेने के लिए भेजा गया कि आज आप जाके फाइनल ईयर की क्लास ले लें, फाइनल ईयर का लेक्चर ले लें OCD के ऊपर, जब भेजा गया तो पहली चीज मैंने ये सोची, मैंने कहा फाइनल ईयर का लेक्चर लेने जाना है तो किट लगेगी, तवा लगाएंगे बच्चे, और वो जो पीछे से आपके साथ करते हैं वो आपको भी पता है, आप सारे स्टूडेंट्स हो माशाल्लाह, कि कोई इधर से बोलेगा, कोई उधर से चौक फेंकेगा, कोई लड़की जुगत लगाएगी। पहली बात तो आपकी क्लास में टिकेगा कोई नहीं, साइकियाट्री का लेक्चर में सारे भाग जाएंगे, और अगर जो टिक जाएंगे वो आपके साथ सही तरह चलेंगे नहीं, जो पाकिस्तान में होता है हमारी बड़ी बड़ी क्लासों में, 200-200 300-300 की क्लासों में। तो मैं तैयारी करने के लिए गया, तो मैंने तैयारी का सोचा कि मैं क्या करूं, तो मैंने 3 टेक्निकल चीजें की, जो सीक्रेट खोल रहा हूं आपके आगे आज अंडर ग्रेजुएट क्लास लेने का। एक तो ये कि मैंने अपने लोगों को राजी किया जो मेरे वार्ड के थे, कि उनमें से 4 लोग मेरे साथ चले, और वो 4 यंगस्टर्स थे जो लगते नहीं थे कि डॉक्टर हैं, भी डॉक्टर बन रहे थे या बन गए, इस तरह के लगते थे, शक्ल सूरत थे ठीक। 4 वो लोगों को राजी किया, और मैंने उनको कहा कि मैंने कहा पीछे से एंट्री करना और बीच में समा जाना मुख्तलिफ रोज के अंदर। अब ये सीक्रेट मानूर भी सुन सो और उनको मैं 4 को मिक्सअप कर दिया क्लास के अंदर। और फिर मैंने अगेन जैसे इसने मुझे कहा कि मुझे ये अंदाजा था कि हम सर्जरी, मेडिसिन, गायनी, फार्माकोलॉजी, एनाटॉमी के लेक्चर सुन सुन के सो जाते थे। 80% से 90% चीजें ऐसे गुजर जाती थी, कभी रजिस्टर ही नहीं की, आज तक कभी लेक्चर में रजिस्टर नहीं की। तो मैंने वो सोचा, मैंने कहा मैं क्या ऐसा करूं कि स्टूडेंट्स मेरे को मैं पढ़ाऊं तो वो रिटेन कर लें जो मैं पढ़ाना चाह रहा हूं। बाकी सारा तो आपने किताबों से ही पढ़ना है, और प्रॉफ आप सारा किताबों से पढ़ के देते हैं, आप लेक्चर पे पढ़ के नहीं देते। लेक्चर सुन के आप प्रॉफ नहीं दे सकते, चीजें नहीं कवर होंगी। सो मैंने OCD पढ़ानी थी, तो मैंने OCD में इसी तरह कुछ शेर, कुछ आहिस्ता आहिस्ता मैंने उसको रिफाइन किया अपने टीचिंग मेथडोलॉजी को। और जब मैं पाकिस्तान से छोड़ के आया तो मेरा स्टाइल ये था कि मैं जाता था, मैं 1-2 फिल्में दिखाता था और मूवी क्लिप्स दिखा के 2-4-6 सवाल पूछता था, उस पर डिस्कशन करता था और आ जाता था। वी हैव टू चेंज आवरसेल्व्स। हमें वो टिपिकल कंजर्वेटिव लेक्चर्स घंटे घंटे के, उनको मॉडिफाई करना पड़ेगा। हमें अपने एजुकेशनल सिस्टम को मॉडिफाई करना पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा कि हम अच्छे डॉक्टर नहीं हैं, हम बहुत अच्छे डॉक्टर्स बन रहे हैं, लेकिन हमें इंटेलेक्ट लोग पैदा करने पड़ेंगे जो दिल से काम करें। हमारे यहाँ अभी भी शायद दिल से काम करने वालों की कमी है, और उसकी वजह सिर्फ ये है कि हम सिर्फ रोजगार की तलाश में कुछ से कुछ हो जाते हैं। सॉरी, मैं सवाल से बहुत आगे चला गया। अगला सवाल प्लीज गो अहेड। सर, आपने बार बार पैशन का जिक्र किया और आपने भी बोला भी था कि ये पैशन डेवलप किया जा सकता है, तो वुड यू लाइक टू एडवाइस अस कि हम कैसे ये पैशन डेवलप कर सकते हैं? राइट, ओके। सो पैशन को डेवलप करने के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज हैं, और ऑब्वियसली वो स्ट्रैटेजीज को प्रैक्टिस करना और इम्प्लीमेंट करना एक थोड़ा लंबा काम है। अगर किसी वक्त आप लोगों का ऐसा फोरम डेवलप हुआ कि जिसमें आपको मोटिवेशनल चीजें करवानी, कैसे मोटिवेट करना है और कैसे पैशन डेवलप करना है वो करना होगा, तो वो मैं डेफिनेटली करवा दूंगा। ये फोरम शायद उसके लिए नाकाफी हो। एक लंबी डिस्कशन है, एक पैरामीटर्स हैं, हाउ टू चेंज योरसेल्फ, हाउ टू मैनेज योरसेल्फ, हाउ टू मोटिवेट योरसेल्फ, लेकिन सारी चीजें हो सकती हैं। साइकियाट्री में खूबी ये है कि हम इन सब चीजों को कर सकते हैं अगर हम करना चाहें। मैं मरीज देखता हूं और मरीज भूल जाता हूं, मुझे मरीज याद नहीं होता। मुझे मरीज याद तब आता है जब मैं मरीज का नुस्खा देखता हूं, फिर मुझे उसकी पूरी कहानी याद आती। जो मरीज अपना नुस्खा साथ लेकर नहीं आते, उनकी कहानी मुझे नहीं याद आती। और ये स्किल इसलिए डेवलप की कि अक्सर साइकियाट्री में ये मशहूर था कि पागलों का डॉक्टर थे आप पागल होंगे। अगर तो मैं पागल लगता हूं तुम्हें,
तो फिर तो ठीक है, पागलों का डॉक्टर पागल होगा, लेकिन अदरवाइज आई बिलीव दैट दीज आर द स्किल्स यू हैव टू डेवलप, और सब कुछ हो जाता है। गो अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन। Sir, we'd love to have that session with you some other time, जब भी आप available हो, of developing these skills. जरूर करेंगे, जब आपके एकेडमिक सेशंस हों बस आप बता देना, हमें पढ़ाने का शौक है, हम पढ़ाने जरूर आएंगे, जब कहोगे, जहां कहोगे, जैसे कहोगे, हम पढ़ाने आ जाएंगे। थैंक यू सो मच सर। सर आपको बहुत शौक है और आपके स्टूडेंट्स भी इसको एंजॉय करते हैं, तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एज अ टीचर, और what you think can be done on part of students to have a better or more engaging lectures or to increase the productivity of those lectures? देखो, टीचर्स का ना जो बेस्ट रिवॉर्ड होता है ना, वो उसी शक्ल में आता है जब आपका शागिर्द आपकी तारीफ करे। मैंने कहा ना कि मोहब्बत वहीं पे इजहार, उसका मजा आता है जहां पे आप एक्सपेक्ट करते हो। जहां आप एक्सपेक्ट ना करते हो, मरीज आपसे मोहब्बत करेगा तो वो तो मरीज है ना, वो मजा नहीं आएगा। लेकिन जब आपका शागिर्द आपसे मोहब्बत करता है, आपसे बात करता है, आपसे इजहार करता है कि जी दिस इज गुड, यू हैव टॉट मी समथिंग, दैट इज द आइडिया। और मकसद सिर्फ एक होता है, मेरा मकसद सिर्फ एक होता है कि मैं इनोवेटिव तरीके ढूंढता रहूं पढ़ाने के और बात करने के। अगर मेरे पास इनोवेटिव तरीका होगा, कोई ऐसी चीज होगी जो मैं मार्केट में शायद नई बेचने निकलूंगा, तो वो लोग खरीद लेंगे। लेकिन अगर मैं मार्केट में वही पुरानी चीज बेचूंगा जो सारे बेच रहे हैं, तो कौन खरीदेगा? Right, sir, you're absolutely right. Sir, back in 2007, आपका एक research article publish हुआ था about the frequency of PTSD in earthquake victims of the 2005 earthquake in Pakistan. So would you share your experience about that, working with the victims of such a large scale disaster? 2-3 रिसर्च पेपर्स लिखने में ना मुझे ज्यादा दुख हुआ, 2-3 जगह पे, और बहुत ज्यादा हुआ। उनमें से एक वजह सबब बना मेरे यहां आने का, उनमें से एक, हमारे नबी अकरम ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की थी। हिजरत सुन्नत है, और मैंने सुन्नत समझ के हिजरत की। Maybe people will say so many things about it, but I did this नियत, मैं हिजरत कर रहा हूँ सुन्नत के तौर पे। सर, क्या आपको इम्पैक्ट करते हैं जब पेशेंट्स आके सैड स्टोरी सुनाते हैं और अपने लाइफ इवेंट्स या ट्रेजेडी सुनाते हैं? सो इंसान भी तो है ना एक साइकियाट्रिस्ट, वो आपको खुद असर करते हैं? आपकी तो माशाल्लाह क्लिनिक पे भी चाहिए, सो मेनी करना पेशेंट्स चाहिए, इसको 100% करना चाहिए, एज ए इंसान बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन मैंने कहा, मैं अपने मरीजों की कहानियां याद नहीं रखता, मुझे मरीजों की कहानियां याद नहीं, लेकिन जो शिजा ने सवाल पूछा उस सवाल के जवाब से रिलेट करूं, जो मेरे लिए वजह सबब बना, जो मेरी घर वालों के लिए भी वजह सबब बना। वो एक खैर, ये शेर मैं फिर किसी वक्त सुना दूंगा, नहीं सुना देता हूं। जुम्बिश से है जिंदगी जहां की, ये रस्म कदीम है यहाँ की, चलने वाले निकल गए हैं, जो ठहरे जरा कुचल गए हैं। अनफॉर्चुनेटली ये एक ट्रेजेडी है। 3 रिसर्च पेपर्स में मुझे मसाइल हुए। एक, जब पाकिस्तान में अर्थक्वेक आया तो बहुत सारे लोग लाहौर से गाड़ियों में भर के वहां गए, और अल्लाह जन्नत नसीब करे, वहां पे हमारे एक साथी प्रोफेसर हारून रशीद चौधरी, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा। ही वाज सीनियर टू मी, ही वाज माय एसोसिएट प्रोफेसर व्हेन आई जॉइंड सर्विसेज हॉस्पिटल। सो उन्होंने भी एक टीम भेजी और हमें भी उन्होंने शामिल भी किया, कुछ हम भी अपने हिस्सा डालने गए। सो वो जो वहां के हालात देखे, घर टूटे हुए, लोग परेशान, सड़कों के ऊपर बुरे हालात में, तो वो एक दिल पकड़ा गया कि जिंदगी का एतबार कोई नहीं,
ठीक है, एक झटके में इंसान फारिग हो जाता है। सेकंड टाइम जब सैलाब आया, उससे पहले कई दफा सैलाब आया जिंदगी में, मेरी जिंदगी में तो पाकिस्तान में बहुत सारे सैलाब आए, लेकिन कभी इस तरह नहीं हुआ। सो जब वो सैलाब आया तो उस सैलाब में रिसर्च के पर्पज से क्वेश्चनर लेके हम वहां पहुंचे, और जब वहां पहुंचे और वहां पे जो हाल देखा तो उस वक्त दिल कुड़ा, और ऊपर वाला याद भी आया कि ये जिंदगी है, एक झटके में आप कहां से कहां पहुंच गए। और आखिरी दफा जब पाकिस्तान में मेरे दिल पे लगी, और उसके बाद मेरी बेगम ने कहा कि जी हमने यहाँ नहीं रहना, हम इस मुल्क में नहीं रहेंगे, और वो मुझे खींच के यहाँ ले आए, वो आर्मी पब्लिक स्कूल का वाकया था। और आर्मी पब्लिक स्कूल में जब वो वाकया हुआ, सब आप लोगों को पता है, तो मैं और मेरी वाइफ हम वहाँ पहुँचे, और ऑब्वियसली खैर हम वहाँ पे कॉन्फ्रेंस अरेंज कराई थी, पेशावर के एक प्रोफेसर इरफान साहब, उन्होंने उसमें गए थे। तो मुझे ड्रॉप करके उस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि मेरी प्रेजेंटेशन थी पहली या दूसरी, और वो ट्रॉमा विक्टिम से रिलेटेड ही प्रेजेंटेशन थी, तो मुझे ड्रॉप करके मेरी बेगम अस्पताल चली गई उन बच्चों को मिलने के लिए जो वहाँ के सर्वाइवर्स थे, और ये 2-4 बच्चों से मिली भी। और उस प्रेजेंटेशन के बाद जब मैं निकला तो ये वापस आ गई थी, तो फिर मैं भी थोड़ी देर के लिए वहां गया और मैंने कुछ लोगों से बातचीत की। दैट वाज द की पार्ट, जो वाकया सुनाए गए वहां पे, कैसे वो बच्चों के कत्ल हुए, कैसे उनको मारा गया, क्या कुछ उनके साथ हुआ, उनमें से जो सर्वाइवर्स थे जो वो स्टोरीज बता रहे थे, आप बीती सुना रहे थे, दैट वाज किलिंग। कि क्या इंसान इतना भी जहाद पे जा सकता है कि मासूम बच्चे इसका विक्टिम बन जाए। हम साइकाइट्री में बहुत सारे प्रॉब्लम देखते हैं, जैसे बेनजीर ने बात की, बहुत सारे मसाइल देखते हैं, लेकिन मास लेवल पे देखना, हकीकत में जिंदगी में जाके वहां पे और क्लिनिक में बैठ के देखने में बहुत फर्क है। क्लिनिक में बैठ के जब आप देख रहे होते हैं तो आपने वो पोशाक पहनी होती है जो साइकाइट्रिस्ट की पोशाक है। सो बहुत सारी चीजें आपको मैटर करती होंगी, लेकिन करती हैं भी, लेकिन आपको क्योंकि उनको सॉल्व करना होता है एज अ अगेन पर्सन हु इज प्रोवाइडिंग हेल्प टू दोज पीपल, आप उस पोशाक में रहते हैं जो साइकाइट्रिस्ट की होती है, और फिर वो झटके आपको नहीं लगते उस पोशाक में रहने की वजह से, क्योंकि आप प्रिपेयर्ड होते हैं कि विक्टिम है, अब्यूज है, रेप है, उसके पेशेंट आपके पास आ रहे हैं, आप उसको एड्रेस कर रहे हैं, देख रहे हैं, हेल्प आउट कर रहे हैं, आपको स्ट्रेटजीज बना के दे रहे हैं। सो आपका एक प्रोफेशनलिज्म जो है ना उसमें ओवरकम कर रहा होता है, आप उसमें इन होते हैं। सो आपको नहीं महसूस होता। ये जो बच्चे नए हैं, महानूर या बाकी सारे, ये भी अंदाजा होगा कि जब ये पेशेंट देख रहे तो आप एज अ प्रोफेशनल देख रहे हैं तो असर नहीं होता, लेकिन जब आप हकीकत में जिंदगी में जाके उन लोगों को मिलते हैं जो मासिव लेवल पे आपके आसपास बैठे हुए, आर्मी पब्लिक के वाकये में बच्चे जैसे थे, फिर आपका दिल टूटता है, आपके भी बच्चे हैं, क्यों? और फिर सवाल उठता है क्यों। सो ये अगेन तल्ख सी बातें, अनफॉर्चुनेटली आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट, किसी वक्त फिर कभी बात करेंगे, इस पे मजीद डिस्कस करेंगे। जी बच्चे, कोई और सवाल? एक क्वेश्चन मेरा है, मतलब आपने अपनी लाइफ की डिफरेंट स्टेजेस के बारे में बात किया, तो इससे मेरे ज़हन में आया कि बीइंग अ प्रोफेसर ऑफ साइकाइट्री, आप अब अल्टीमेटली जब आप अपने करियर को देखते हैं तो क्या चीज आपने ज्यादा एंजॉय की, द टीचिंग पार्ट ऑफ इट या जो आपने पेशेंट्स को ट्रीट किया? एंड टू ऐड ऑन के मतलब आप क्या चीज आपको ज्यादा प्लेजर देती है जब एक फॉर एग्जांपल शिजोफ्रेनिया का पेशेंट जिसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत पुअर थी वो बहुत इंप्रूव होके आपके पास आता है, या जब समवन लाइक डॉक्टर महानूर आपको बताती है कि सर आपने मुझे किस तरह इंस्पायर किया, तो मतलब क्या चीज अब आपको ज्यादा प्लेजर देती है, द टीचिंग पार्ट ऑफ इट या द क्लिनिकल प्रैक्टिस? आई होप आपको समझ आ गया मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल समझ आ गया। फादिस, छोटी सी बात करूं, हुक्म तेरा है तो तामील किए देते हैं, जिंदगी हिज्र में तहलील किए देते हैं। हुक्म तेरा है तो
तामील किए देते हैं, जिंदगी हिजर में तहलील किए देते हैं। एज अ साइकियाट्रिस्ट आई बिलीव के प्लेयरेबल फीलिंग आपको जहां से भी मिले, जैसे भी मिले, जिस तरह भी मिले, ऑफ कोर्स एक्सेप्टेबल जुमेन में रहते हुए, मतलब ये ना करना कि डॉक्टर नासिर ने कह दिया तो जाके बंदूकें चला के को गड़बड़े कर दो, नहीं, एक्सेप्टेबल जुमरे में रह के उन प्लेयरेबल फीलिंग्स को महसूस करो। ये जिंदगी बहुत शॉर्ट है, वक्त बहुत तेजी से गुजर जाता है, हम एक दूसरे को काटने, मारने, गिराने और झुकाने में लगे रहे वक्त गुजार देते हैं, which is not the life. Life is to feel the pleasure of every moment in around you. ये मनी प्लांट मेरे कमरे में लगा है, इसका जब नया पत्ता निकलता है ना, तो मेरे बच्चे मुझे कहते हैं कि इतनी खुशी बाबा की आंखों में आती है कि जैसे इनके घर कोई नया बच्चा आ गया। राइट? एंजॉय दोस फीलिंग्स, दोस मोमेंट्स। ये जब रोशनी में नीला आसमान मुझे नजर आता है ना, प्योर ब्लू स्काई, क्लियर, तो उसमें भी बहुत खुशी मुझे मिलती है। सो ये छोटे छोटे लम्हात को महसूस करो, ये आपकी जिंदगी की अच्छी मेमोरीज में शामिल हो जाएंगे। मैंने आपको जो किस्से सुनाए अपनी जिंदगी के, मैं मानूर को अक्सर कहता हूं, अपनी मेमोरीज बनाओ, अपनी अच्छी मेमोरीज बनाओ। वो मेमोरीज आपने बनानी है, आपने उनको रजिस्टर करना है और स्टोर करना है। अच्छे चीजों को स्टोर करो ताकि जब वक्त मिले तो उसको एंजॉय करो। बुरी चीजों को स्टोर मत करो अपने दिमाग में ताकि आपकी मेमोरी एग्जॉस्ट हो जाए। मैंने उसको कैसे गिराना है, उसको कैसे जलील करना है, उसको कैसे तोड़ना है, उसको कैसे मारना है, ये बुरी मेमोरीज हैं। छोड़ दो, इनको फिजल आउट होने दो, डिसइंटीग्रेट हो जाने दो। अच्छी मेमोरीज को प्रिजर्व करो और एंजॉय करो। यही साइकियाट्रिस्ट है, साइकियाट्री है, और यही जिंदगी है। शिजा, और सवाल? Sir, we do have more questions, but I guess this is a very good message to end this meeting. We can surely have more meetings with you in the future. We'll definitely look forward to them. और जैसे अभी आपने कहा कि make good memories, so I am 100% sure that this will be one of the best memories of all the attendees here today. Thank you very much, Shiza. It was wonderful. मुझे नहीं पता सही बोला गलत बोला, लेकिन जो भी बोला दिल से बोला, और उम्मीद है कि इसको दिल से एक्सेप्ट करोगे। Thank you very much. Thank you so much, sir, for finding out time. It means a lot. Thank you. It means a lot. Okay. Sir, it was an absolute pleasure listening to you, and we do look forward to more sessions with you. Thank you so much. इंशाल्लाह जिंदगी रही तो जरूर, जब कहोगे, जहां कहोगे। Thank you. Thank you, sir. And thank you, Dr. Mahnoor, for sharing your experience with us. Thank you. Allah Hafiz.